So, welcome Vishalda to this Stack It channel. Literally, I'm so excited to have you here. I'm like, I wanted you in this platform. We had a talks about everything and everything with respect to the, I would say, career with respect to the somewhat sports also. But yeah, Mhm. being you, like seeing you here, doing the podcast with you, I think it's very, I think it's honor to me basically. And I would say from like about your journey, I would say from being a rookie to the from being a rookie to the corporate life and coming to this professional. I Mhm. mean, it's so admirable, man. It's so admirable. I perfectly like I feel like you are the best one to be on this platform. And with your journey, I think that many people will get motivated, and I think it will inspire many of the lives to get into the Amazon belonging from a normal college and landing into this big company and this big program. So welcome, Vishal. So how do you see yourself as of now? Like, what do you think? Tell me Uh, about yourself first. so I'm quite happy. I mean, Amazon is a company where you can get retired. When I joined Amazon, I heard from few people from my senior, like one of the HR, I remember she told me like she's planning to get retired after 1 year. So I thought, ki, yeah, this is the best place to work in. And obviously, Amazon is one of the best company, best work culture and work-life balance we have. Awesome, awesome. So how do you see yourself today? Like, what are your motivations in day-to-day life, and what do you feel as a professional when you stand in front of the mirror? What do you think about yourself today? See, I'm very much confident about myself with my routine, with my work-life balance. I don't have any work pressure. Basically, I can log in, log out at any time. I can work depending on my time. I can take leave. I don't need permission from my manager that I want to go to this place for Awesome. tracking or for traveling. So I'm loving it. Like basically, you can say I'm managing program. I don't have to take permission from my senior manager to talk with my stakeholder or the requester. I can pitching my idea to the stakeholder as well. So obviously, I'm loving my job currently. Mhm. So while doing that research, I also found that you are one of the witty person around by seeing your LinkedIn comments, by seeing your Facebook comments. So what goes on in your mind while putting down those comments basically? Like, are you do you like do have is your thought processes like that, or is like you just force something to no boss, let's be funny at that at some point of time, or it's your like basic nature like that? It is a random thoughts you can say because I'm social media person. I'm present in every platform, whether you talk about Twitter, Insta, Facebook, and from my school days, you can say I'm using this Twitter, then Facebook, everything. I love meme part. You can say so. Yes, so it's a random thought, not exactly that I have to, put the comment and it needs to go for a reach or something like that for the attention. I guess many of the audience don't know this, but let me tell the audience that Vishal was my junior in the college. And basically, I think in college, we never talked in depth. But after college, when we were in the struggling phase, I think we have talked in college. We were like, hi, hello. Ah. Right. And after the college, once we have started into the job and eventually sharing the same journey after the college initially, and Mhm. think after that we have started and like we started gelling up. We also planned somewhat, but eventually it didn't happen. I hope it happened in the futures. Mhm. Right. Yes, exactly. So College time mein, it's like I'm very choosy at that point of time. I made few friends. hmm, लोगों से काफी कम बातें करता था. Depends कि मेरा friend circle छोटा रहे, ये हमेशा prefer करता था. And I talked to few of the seniors. तुम्हारे साथ भी hi hello because we met in one society, I believe, Trojan Society. We right, get to know each right. other. So yeah, then slowly and slowly बात होता रहता था हाय हेलो लिंक्डइन में फिर हम लोग का बात होता गया with the Agree. journey. So Vishal, I would say
you are currently working in Amazon, right? Yeah. So from coming from a normal college, okay, Mhm. and being a such professional and a confident person, I would say, Mhm. okay, how would you like to share your journey over this period of time? क्या लगा आपको कि boss, this is my potential, Mhm. लेकिन ये मेरा कॉलेज है बट मेरे इससे पोटेंशियल के ऊपर कर सकता हूँ, राइट? सो Mhm. what moves you or what drives you or how would you explain it basically, जो हमारे ऑडियंस को, if anyone into college from a second tier or a normal college and he is looking or inspiring to come into like company like Amazon, Google, Microsoft, Deloitte, so आप उसके लिए क्या आपके पास है वो, I mean. Okay, so let's start from my graduation first. So when I checked shiksha.com, मेरा एक budget था that I want to do BTech within this range because my I have two elder brothers. My father was in defense, so we have some limited budget for to do BTech. I research about the college. I put the filter and all. I get to know कि मुझे बीटेक करना है for within 6 LPA के within six lakh के करीब मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाए. The reason was that कि to earn those 6 lakhs डिपेंड करता मैं कितना महीने में कितना साल में Right, कमा रहा हूँ. right. And I got the opportunity. मैंने कॉमेट के दिया था बैंगलोर को, but the price for the बीटेक was like पूरा कोर्स कंप्लीट करने में 15 के करीब जा रहा था. सो आई थॉट Okay. कि यार 15 अगर मैं 15 लाख खर्चा करता हूँ वो मुझे टाइम लगेगा यूटिलाइज करने में. एंड आई वाज टेकिंग लोन फॉर इट. तो Oh. या मैंने एजुकेशन लोन ले रखा था. तो मैंने फिर महर्षि मर्कंडेश यूनिवर्सिटी देखा था. आई चेक द प्लेसमेंट स्टैट्स एंड एवरीथिंग. And the Alumni was very strong at that point of time when it falls under Kurukshetra University. Right. And when I joined, the highest package was 18 LPA for the Microsoft. So I thought कि I will choose I choose the Maharishi Markandesh University at that point of time. Then I opted for computer science engineering because मेरा class 12 में भी computer science था when I did my schooling from Kendra Vidyalaya. So I took this computer science engineering. And धीरे धीरे आई वाज स्ट्रगलिंग कि कोडिंग में मुझे प्रॉब्लम आ रहा था स्टार्टिंग में फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग में. आई मुझे और मैं मैथ्स में वीक था काफी ज्यादा. इफ यू डोंट रिमेम्बर मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे एक लॉजिक बनता है कि मैंने 4 टाइम नेशनल लेवल चेस चैंपियनशिप खेला है. Oh God, yaar. I knew this. So sorry, I forgot to mention this, but congratulations on this, man. I knew this. Sorry. या तुम्हें पता होगा कॉलेज में भी इवेंट थे. Right, right. तो बट बेसिकली पीपल थिंक कि जो चेस में ज्यादा स्ट्रांग है वो मैथ्स में काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा. बिकॉज मेरे मेरे 2-3 फ्रेंड है जो मेरे साथ चेस चैंपियनशिप खेले थे. एक बंदा भी IIM बैंगलोर में MBA कर रहा है. Oh. दूसरा बंदा भी अच्छे जगह में पोस्टिंग है. ऐसा है मतलब जो चेस खेल रहा है वो अच्छे अच्छे जगह में पोस्टिंग है. तो मेरा ऐसा था, मेरा मैथ स्ट्रांग नहीं था, उनका मैथ स्ट्रांग काफी था. उनका 12 का परसेंटेज काफी ज्यादा अच्छा Right. था, मेरा मैथ्स काफी वीक था. तो मेरा 12 में भी परसेंटेज काफी कम था, लाइक 68 परसेंटेज था मेरा. व्हेन जब मैं बोर्ड का एग्जाम दे रहा था मेरा मैथ्स का कैलकुलस पार्ट बहुत वीक था, तो मैं कैलकुलस को टच भी नहीं किया था उस टाइम पे. Oh God. मेरा मैथ स्ट्रांग था, so I think we are not on same page in this. या बट हाँ लॉजिकली मेरा माइंड काफी स्ट्रांग था इस चीजों में सोचने का, ये सब चीजों Right. में. फिर अगर स्टार्ट करता हूँ मेरा फर्स्ट ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में, तो मेरा फर्स्ट बैकलॉग लग गया था फर्स्ट सेम में ही. वो भी था मैथ्स 1. फिर लगा था मैकाट्रॉनिक सब्जेक्ट पे मेरा. Oh. ओके. सो उस टाइम पे लगा था, मैंने सोचा कि क्या हो गया मेरे साथ. फर्स्ट सेम में ही मेरा बैक लग गया था. फिर एंड ऐसा लगा कि मैंने गलत डिसीजन ले लिया बीटेक लेके, या फिर लगा कि छोड़ दो? सी वहां पे मेरा काफी ये फेस करना पड़ा था, बैकलैश यू कैन से, बिकॉज आई टुक द एजुकेशन लोन एंड आई हैव टू क्लियर ऑल द Right. सेमेस्टर टू गेट द I नेक्स्ट can सेमेस्टर understand as फी. the middle class person. I can feel you because I have done the similar kind of thing. यस. सो आई नेवर न्यू कि तुम्हें हर सेमेस्टर क्लियर करना पड़ेगा. यू हैव टू प्रेजेंट योर मार्कशीट टू द बैंक मैनेजर टू Bank, right? फॉर द नेक्स्ट सेमेस्टर. सो मेरा हाँ. फर्स्ट सेम में बैक लग गया था. आई गॉट मतलब पहला फर्स्ट सेम तो मुझे बैंक ने लोन दे दिया था. देन व्हेन मैं सेकंड सेम के लिए बैंक के पास गया था, देन दे टोल्ड मी कि हमारे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इफ यू हैव द बैकलॉग वी कांट प्रोवाइड यू द लोन.
एंड आई Oh, वाज wow. लाइक ये क्या हो गया, आई मीन मतलब ये डिसीजन मेरा था टू डू द बीटेक। मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे कुछ किसी चीज के लिए फोर्स नहीं किया, हाँ, और मेरे साथ ये हो गया। देन आई रियलाइज कि हाँ मुझे स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, क्योंकि जब मैं सेकंड ईयर के लिए मैं फीस लिया, तभी मुझे बैंक ने मना किया था। तो किसी तरह wow. सेकंड सेम में मेरा बैकलॉग लग गया था मैथ्स 2 में। So हम्म, I had 3 backlog, maths 1, maths 2 and mechatronics. And I promised myself कि अब से बैकलॉग लगाना ही नहीं है फिर। तो फिर मेरा बैकलॉग लगा नहीं, एंड समहाउ मैंने पास करता गया, बस होता गया। अब बात होता, अगर मैं आप बताओगे मुझे कि मैंने क्या, कब से मैंने अपना इंटरेस्ट शो किया ये आई मीन कॉर्पोरेट लाइफ में। इफ हम्म, यू वेरी मच अवेयर कि वी इन द कॉलेज वी डोंट नो एग्जैक्टली कि कोई कंपटीशन होता है कोडिंग के लिए, राइट, कुछ कुछ कम्युनिटी होता है कोडिंग वालों के लिए। जैसे हमारे राइट, पास अभी मल्टीपल ऑप्शन है, गूगल समर ऑफ कोड है, देन गोल्डमैन सैक्स का भी है, फिर काफी कंपनीज के हैं जो कोडिंग होता करेक्ट, रहता है। करेक्ट, हमें तो कोडिंग कुछ, होते रहते हैं। हाँ गीक्स हमारे फॉर पास, गीक्स है, बहुत है यार, कोड दुनिया है, बहुत है, राइट। हाँ तो हमारे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था कि मुझे पता नहीं चल रहा था कि व्हाट आई डू इन माय फ्यूचर। मुझे बस इतना पता था कि आई हैव टू डू, किसी तरह स्टडी करना है, गेट द जॉब, दैट्स इट। बाकी जॉब मिलने के बाद वहां सीख लूंगा, ऐसा था। देन ओके, आई रियलाइज आई डोंट हैव, मेरे पास उस टाइम पे व्हेन आई वाज इन सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर था, मेरे पास कोई लैपटॉप नहीं था। ओके, थर्ड ईयर के एंड में मैंने लैपटॉप परचेज किया था। हम्म, ठीक है, देन मैंने कोडिंग के लिए थोड़ा बहुत, मुझे कोडिंग कुछ समझ में नहीं आया था क्या हो रहा है क्या नहीं। कॉलेज में भी जो स्टडी किया जा रहा था वो एक ऐसा नहीं था यस, कि वो अलग। ऐसा इन कॉलेजेस में ना, आई वुड से नॉट इन कॉलेजेस बट इन लेवल ऑफ कॉलेज में ना, सब कोडिंग पे ही फोकस कर लेते हैं। एंड दे लाइक कि अगर आप कोडिंग नहीं कर सकते हो तो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, बट इवेंचुअली इट्स नॉट ट्रू। लाइक मैं भी कोडिंग में इतना स्ट्रांग नहीं था, बट स्टिल मैं आई कैन प्रेजेंट द थिंग्स, राइट, आई नो, आई थिंक आई कैन थिंक लॉजिकली। मैं रीजनेबल में स्ट्रांग हूँ, रीजनिंग में स्ट्रांग हूँ, आई राइट, थिंक, बट इट्स नॉट नेसेसरी एज अ कॉलेज आप सब कुछ, आपका अगर आप 100% है तो आप 90% कोडिंग पे फोकस कर रहे हो, राइट। राइट। सो या, सो आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। सॉरी विशाल, हाँ नहीं नहीं, इट्स फाइन। आई मीन हमें ये भी नहीं पता था कि कोडिंग के अलावा हमारे पास काफी दुनिया है, काफी रोल्स राइट, एंड वी डोंट हैव एनी मेंटर, वी डोंट हैव एनी सीनियर हु कैन गाइड अस कि विशाल, इफ यू आर नॉट गुड इन कोडिंग पार्ट, देयर आर मल्टीपल जॉब पोजीशंस फॉर द कंप्लीटली फ्रेशर एज एग्री। वेल, यू कैन स्विच इन दैट रोल। जो वी हमारे पास वो रिसोर्स नहीं था ना, हमें कुछ पता था। एंड I remember one teacher, a professor, his name was Mehra, if you remember. हम्म, So he told us to open the LinkedIn platforms. करो। दिन धीरे धीरे हम्म, मुझे पता चला लिंक्डइन के बाद, लिंक्डइन मैंने यूज करना स्टार्ट किया। देन मुझे लगा कि अब मेरा कुछ होगा नहीं कोडिंग का। देन काफी रिसर्च करने के बाद आई गेट टू नो अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। तो डिजिटल राइट, मार्केटिंग में मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे कोई कोडिंग पार्ट नहीं है, इट इज लाइक सोशल मीडिया तुम्हें हैंडल करना है, वेबसाइट रैंकिंग करना है। तो मुझे वो पार्ट काफी इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने पहले डिजिटल मार्केटिंग पे फोकस किया था काफी कुछ, तो मैंने सर्टिफिकेशन भी ले लिया था काफी टाइम। वो मैं बता रहा हूँ थर्ड ईयर ऑफ की इंजीनियरिंग के मेरे लास्ट जो होते हैं दिसंबर जनवरी के टाइम में मैंने डिजिटल मार्केटिंग में फोकस करना स्टार्ट किया। देन डिजिटल मार्केटिंग में फोकस करने के बाद हमारा स्टार्ट हुआ कैंपस प्लेसमेंट। और डिजिटल मार्केटिंग में मेरा इतना स्ट्रांग नहीं था, आई ट्राइड फॉर वेरियस इंटर्नशिप थ्रू इंटर्नशाला। Then I went to one company in Chandigarh. I don't remember exactly the name. So they selected me for the interview. They told me to come to their place, and I went there, and they told me like, do you have any work experience with this एंड ranking यू एज अ website? फ्रेशर आस्किंग Yeah, and they are एवरीथिंग, expecting me to that मेरे पास राइट, experience है। I told them कि I know the how it works, but I need the project to work on। तो they denied कि नहीं हम लोग नहीं कर सकते। तो ये था मेरा स्ट्रगल ऑफ इंटर्नशिप डिजिटल मार्केटिंग। मुझे स्कोप नहीं मिल रहा था काफी कुछ। एंड धीरे धीरे फोर्थ ईयर ऑफ इंजीनियरिंग आना स्टार्ट हो गया। द कॉलेज वाज पुशिंग अस टू गेट इन इन्फोसिस, इफ यू रिमेम्बर। तो इफ यू अगर ऑडियंस को ही मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉलेज के टाइम में इन्फोसिस इज ए बिग बिग नेम यू कैन से। इंस्पिरेशनल कंपनी है, मुझसे भाई, या अब वहां चले गए, जिंदगी सफल है उस समय। बस
इन्फोसिस नहीं मिला तो लाइफ खत्म हमारा, ऐसा सिचुएशन था। एग्री एग्री कंप्लीटली एग्री यार। एग्री। तो मेरे पास थे बियर्ड काफी कुछ, मैं मतलब कभी मैंने शेव नहीं किया था, क्लीन शेव नहीं किया था। देन द आवर टीपीओ टोल्ड अस कि कि तुम्हें शेव करना है, वेल ड्रेस पहन के आना है, पूरा फॉर्मल वगैरह। मैंने तब अपना शेव वेव किया, पूरा क्लीन शेव, इन्फोसिस के लिए प्रिपरेशन वगैरह सब कुछ, कि इसको निकालना है। बिकॉज मैं एप्टीट्यूड में इतना स्ट्रांग नहीं था, अब निकालना एप्टीट्यूड, अगर एप्टीट्यूड निकल गया तो मेरा हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन था। क्लीन शेप करके आया, इन्फोसिस में पहले राउंड में आउट भाई। मैं भी तब आउट हम था भाई, हाई फाइव। तो मतलब कुछ ऐसा एक्सपेक्टेशन ये था कि मतलब इन्फोसिस ऐसा हाइप बन गया था कि इन्फोसिस में जाना ही जाना है सभी को, इन्फोसिस राइट नहीं तो कुछ नहीं। और राइट। पहले राउंड में आउट, तो मैं काफी डिप्रेस हो गया था कि क्या होगा अब तो कोई अच्छा कंपनी तो मिलेगा नहीं, इन्फोसिस सबसे बड़ा है आ रहा है कैंपस में। यार ऐसा डीमोटिवेशन सा फील होता था ना उस समय, व्हेन आफ्टर द Infosys एग्जाम एंड वी आर नॉट सिलेक्टेड, इट हाँ फेल्ट लाइक, एंड वो हम लोगों का माइंडसेट वैसे कर दिया गया था इवेंचुअली। अब मुझे समझ में आता है कि दीज माइंडसेट आर नॉट एग्जैक्टली द राइट थिंग फॉर द स्टूडेंट। आपको राइट। अभी भी बहुत कॉलेजेस में ऐसा होता है वेयर ओनली 1 and 2 कंपनीज कम, एंड colleges force like you, अगर आप इस कंपनी में नहीं गए then you have no life, which is eventually not the right mindset, because there are lot and bundle of opportunities outside that company and outside that college. या और सो ये चीज एक्सपोजर में कॉलेज में ही देना बहुत जरूरी है मुझसे। हाँ, हमारे यही प्रॉब्लम है कि हमारे जो टायर 3 कॉलेजेस है, अगर बाकी लोग भी टायर 3 कॉलेज से ही हो, आपको भी पता होगा कि आप लोग के लिए भी टीसीएस, इन्फोसिस, कैपजेमिनी हो गया, कॉग्निजेंट कॉग्निजेंट वगैरह, एंड वो राइट। तुम्हारे लिए ड्रीम कंपनी, और तुम्हारे टीपीओ या प्लेसमेंट ऑफिसर सब वही पुश करते रहेंगे तुम्हें कि यहाँ पे जॉब लेना है। बट हमारे टाइम में मैं 2018 पास आउट हूँ, आयुष 2017, वी हमें पता नहीं था कि ऑफ कैंपस भी होता है, राइट एग्जैक्टली आयुष, कि ऑफ एग्जैक्टली। कैंपस भी होता है, कि amazon.jobs में जाओ, वहां पे अप्लाई करो जॉब। हमें ये भी नहीं पता कि जॉब कहाँ से अप्लाई करना है। एग्री एग्री। ये यही हमारा सीन था कि आयुष के पता है, हमें पता है कि हमें पता नहीं था कहाँ से जॉब अप्लाई करना है, कैंपस प्लेसमेंट हमारे पास है, इसके अलावा जॉब हमारा अपॉर्चुनिटी नहीं है, और कोई फ्रेशर को हायर नहीं करेगा। राइट। तो कोडिंग तो मेरे कोडिंग तो मेरे हाथ से गया था, मुझे पता था कि कोडिंग मुझसे होगा नहीं। डिजिटल मार्केटिंग ही था मेरे पास उस टाइम मेरे हाथ में, तब देखा कि डिजिटल मार्केटिंग का कोई कंपनी भी कॉलेज में नहीं आ रहा था। जैसे इन्फोसिस निकल गया अपने कॉलेज से, फिर बाकी जितना भी इंटरव्यू, मतलब जो भी कैंपस प्लेसमेंट के लिए आए थे, सब सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आए थे, राइट आयुष, कोई राइट भी। कंप्लीटली एग्री भाई, कंप्लीटली एग्री। हाँ, और एक आया था बीडीए के लिए, सेल्स के लिए, जो कि मुझसे कभी होने वाला नहीं है। मैं इतना भी स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं पिचिंग करूं, मैं बेच पाऊं सब कुछ। राइट सेल्स हमारे कैंपस में तब सेल्स का ज्यादा आता था और डेवलपर के लिए आ रहा था। राइट। तो डेवलपर मुझे आता, डेवलपिंग मुझे, कोडिंग वगैरह तो मुझे आता नहीं था, छोटा ब्लैंक बहुत है राइट। ब्लैंक था कि सी प्लस प्लस कर दिया, इतना मुझे पता था थोड़ा बहुत। कभी ऐसा मैंने काफी कंपनी, हेक्सावेयर, पता नहीं बहुत सारा रैंडम कंपनीज है, बट पैकेज वाज वेरी लो। अगर मैं बताता हूँ अगर ऑडियंस को, हमारे जब कैंपस प्लेसमेंट हो रहा था तो द डिसेंट पैकेज हमें मिलता था 3.5, वो करेक्ट, इन्फोसिस से। मैं भी वही कहने जा रहा था बिल्कुल। सभी का ये है कि उस टाइम पे उनका राउंड था 5 और 6 राउंड, और स्टूडेंट से हाँ इतने सारे यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट, उस मतलब राउंड क्लियर करना इज ए वेरी टफ। अगर मैं बात करता हूँ ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस मेरे लिए टफ लग रहा था उस टाइम पे, यार, क्योंकि आई लेट सॉरी टू इंटरप्ट, बट मैं ना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा विद द ऑडियंस से विद सिमिलर डोमेन। एक कंपनी आई थी केपीआईटी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, एसएपी के राइट। लिए। हाँ एसएपी के लिए। हाँ। एंड आई वाज नॉट अवेयर कि उनके एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ राउंड्स हैं, एंड वो मैं गया जब पहला दिया, मेरा पहला क्लियर होगा, देन आई गॉट टू नो कि उनके 5 to 6 राउंड्स हैं। ठीक है। ओके। एंड मैं आई गेस मैं 5th राउंड तक पहुंचा था, लास्ट सेकंड राउंड पे मैं जाके बाहर हुआ था। एंड मैं पूरा दिन भर, एक फर्स्ट डे पूरा दिन भर जाने के बाद नेक्स्ट डे तक रात में 10-11 बजे मेरा इंटरव्यू हुआ है, नेक्स्ट डे 10 at night। एंड वाह। उसके बाद मैं, आई डोंट नो कि मैं क्या गलत कर दिया, लाइक व्हाट आई हैव डन द रॉन्ग इन द इंटरव्यू, आई नेवर डिड द एनालिसिस ऑन दैट। बट हाँ मुझे ये लगा कि यार आफ्टर सम टाइम आई रियलाइज वो माइंड मेरा इतना बर्स्ट आउट हो चुका था ना ये 2 ईयर के दिन में। आप हमेशा टेंशन में रहते हो राइट, कि हाँ। बॉस क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। बट हाँ आई थिंक ये
सिचुएशंस कभी कभी आपके लाइफ में आनी भी चाहिए, जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा पॉजिटिव्स उसमें देखने चाहिए कि हाउ टू डील विद दैट। बट एज अ कॉलेज में हम यार नए होते, वी आर एज अ फ्रेशर, राइट? हमें इतना सिचुएशन, हमें वी एज अ मिडिल क्लास पर्सन, आई थिंक हमें लाइफ स्टेक पे होती बहुत, हमें जॉब चाहिए तो चाहिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो आई थिंक ये सब भी मैटर करता है कहीं ना कहीं। हाँ वो चीज, हाँ ये तो था, और इतने राउंड थे कि, और हाँ, पैकेज भी इतना कम मिल रहा था, कोई ऐसा नहीं कि 10 LP दे रहा हो, 8 LP। मुझे राइट। लग नहीं रहा था कि उस 2018 में कोई ऐसा कंपनी आया था जो हाँ, कोई अच्छा प्लेसमेंट मतलब पैकेज दे रहा था। तो स्टूडेंट भी जही, हमारे स्टूडेंट्स भी उस टाइम पे पता नहीं काफी स्ट्रगल चल रहा था हमारे बैच का। तो लोग 2 LP हो, 3 LP हो, वहीं पे दौड़ रहे कि भाई एक जॉब लेना है। सभी का सिचुएशन ऐसा था, और मेरा भी था। मेरा कैंपस प्लेसमेंट हो नहीं रहा था टिल जनवरी 2018 पास आउट हूँ, 2018 तक 19। मेरा हो नहीं रहा था। मैं ऐसा स्ट्रगल था कि मैं बताता हूँ कि ऑडियंस को कि इफ यू, मैंने शायद 2-3 बार मैंने बायजूस का इंटरव्यू दिया था बीडीए के लिए। आई वेंट टू नोएडा वन डे जस्ट टू अटेंड वर्क इन इंटरव्यू, एंड वन डे टू चंडीगढ़। उस टाइम पे बायजूस का काफी वो चल रहा था, और मेरे हाथ में जॉब नहीं था मुझे, क्योंकि मुझे जॉब लेना था किसी तरह। मुझे ऐसा था कि जॉब मिल जाए फिर काफी कुछ स्ट्रगल निकल जाएगा। तो आई वेंट टू नोएडा, मैंने अपना रिज्यूमे भेजा, इंटरव्यू के लिए गया। मुझे पहले ही दिन, पहले उस 5 मिनट में मुझे निकाल दिया, बोला कि नहीं होगा तुमसे। सेम चंडीगढ़ में भी बायजूस में गया, वहां पे भी नहीं हुआ। ऐसा स्ट्रगल था। मैं अपने आप को होपलेस फील कर रहा था कि करूं तो करूं क्या, कुछ हो नहीं रहा था मेरे पास। फिर जनवरी के स्टार्टिंग में मैंने और थोड़ा रिसर्च किया, मैंने काफी साइट्स विजिट किया। मैंने बिजनेस एनालिस्ट के नाम आया मेरे पास कि एक ऐसा डेजिग्नेशन है जिसमें तुम्हें कोडिंग नहीं चाहिए, तुम्हें ये सब स्किल चाहिए, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, स्टेक होल्डर से कम्युनिकेशन, जो भी हो। तो वो मुझे लगा कि हाँ ये ऐसा, क्योंकि मेरे पास लीडरशिप क्वालिटी पहले से था, लगता था कि ये फील्ड मेरे लिए इंटरेस्टिंग था काफी कुछ। फिर देन वन फाइंड, तब शायद फैब के टाइम में, अच्छा एक इंसिडेंट भी हुआ था, ये आयुष को ही पता नहीं। ये था सेकंड इंटरव्यू। उसका नाम, कंपनी का नाम पता नहीं, मेंशन भी नहीं कर रहा उस कंपनी का नाम बेसिकली। तो 4-5 राउंड हुआ, 4-5 राउंड मैंने क्लियर कर लिया था। लास्ट राउंड पे मेरा थर्ड फोर्थ राउंड टेक्निकल था, वो भी क्लियर हो गया। फिफ्थ राउंड में मैंने HR राउंड था, वो भी अच्छा ही गया था मेरा। मैंने काफी डिजिटल मार्केटिंग और का बारे में बताया था, और काफी कुछ नॉर्मल है, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसा पोजीशन के लिए कर, डेवलपर के लिए कर रहे थे, और कोई एक पोजीशन के लिए जिसमें कोडिंग चाहिए नहीं। एंड आई वॉज वेरी कॉन्फिडेंट कि मेरा वो निकल जाएगा। मतलब बस 6-7 लोग लास्ट राउंड तक गए थे, तो मैं काफी खुश था। पैकेज भी डिसेंट दे रहा था, 4 के आसपास या 3.5 ऐसा ही दे रहा था। मैं बोला कि लग जाए बस जॉब। फिर एक दिन मेरे जब रिजल्ट आया कि किस किसका कैंपस प्लेसमेंट हुआ है इस कंपनी में, तो मेरा नाम नहीं था। एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग द अदर पर्सन टू डेड ऑन द लिस्ट। तो ऐसा लग रहा था मुझे, उसमें लगा था कि उसमें कुछ कॉल, पता नहीं कैसे कॉल वो लोग लिया है, पता नहीं। देन मैंने डायरेक्ट लिंक्डइन में जिसने कैंपस रिक्रूट किया था उसको मैंने मैसेज किया था। ओके सो आई मतलब वो बचपना वाला हालत होता ना कि मैंने रिक्रूटर को पूछा कि व्हाट वेंट रॉन्ग एग्जैक्टली इन माय इंटरव्यू, टेल मी कि मेरा तो काफी राउंड क्लियर हुआ, HR राउंड भी अच्छा गया, बताओ मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे है। हाँ देन देन द रिक्रूटर, हाँ देन वो HRBP ने मुझे रिप्लाई किया था। देन शी टोल्ड मी ओके गिव अस हाफ एन आवर, आई विल रीच आउट टू यू। मेरा नंबर ड्रॉप कर दिया, सब कुछ कर दिया। देन उनकी जिसने इंटरव्यू लेने आई थी एक लड़की, मतलब आई थी लड़की, तो उसने मुझे कॉल किया। कॉल पूछ के नाम क्या है, ऐसा ऐसा। तो बोला कि नहीं तुम्हारा टेक्निकल स्किल्स नहीं था, इसलिए हमने तुम्हें हायर नहीं किया, ऐसा कुछ मतलब बताया। तो मतलब ठीक है, तो आप मुझे, ठीक है, मैंने बोला ठीक है इट्स फाइन, ठीक है, मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैंने अपना फीडबैक ले लिया, दैट्स फाइन। तो मैं अपने खत्म, मेरे कान में थोड़ा दुख वुक था। मैं फिर नेक्स्ट राउंड के लिए, इंटरव्यू के लिए कोडिंग दे रहा था अपने अपने मतलब क्लासरूम वगैरह में। तो अचानक से TPO सर आए। TPO सर खुश, विशाल सर। देन कंप्लेंट पहुंच गई हाई राइज तक। हाँ मतलब TPO तक पहुंच गया था। देन मैंने बोला कि आई एम विशाल सर, प्लीज कम टू मी आफ्टर दिस राउंड, तुम्हारे साथ बात है ना। ओके मुझे पता चल गया कि वो वही कॉल है, मुझे बुलाया गया, आज तो हो गया, कांड हो गया। देन TPO मुझे बोला कि
हाउ तुम डायरेक्ट रिक्रूटर के पास जा रहे हो, तुम मैसेज क्यों किया, यू आर इंसल्टिंग द कॉलेज रेपुटेशन एंड ऑल, तुमने डायरेक्टली कैसे रीच आउट किया। तो उस टाइम पे हम लोग को पता नहीं था ये सब चीजें। मैंने बोला कि हाँ। मुझे फीडबैक लेना था, मेरा इंटरव्यू काफी अच्छा गया था बट हुआ कि नहीं, इसलिए मैं अपना फीडबैक लेने के लिए गया था। हम्म। मुझे टीपीओ ने बता दिया कि तुम्हारा और कैंपस प्लेसमेंट होगा नहीं, तुम्हारा नाम अगर लिस्ट में आ जाता है हम तुम्हारा नाम शेयर नहीं करेंगे। ओ गॉड। ये सीन था मेरे साथ टिल ओ इतना तक। गॉड। तो सीरियसली। मेरे तो लग गए थे अच्छे से, हाँ। प्लेसमेंट तो हो नहीं रहा था, अब होगा तो टीपीयू सर तो मुझे वो लिस्ट पे नाम आने नहीं देगा, ऐसा हाँ। सिचुएशन था। फिर किसी तरह मैंने सॉरी, काफी टाइम मैंने सर को सॉरी सॉरी बोलते बोलते गया था। वो सर अभी फिलहाल है नहीं टीपीयू, अभी हमारा प्लेसमेंट ऑफिसर काफी चेंज होगा, काफी चेंजेस है हमारी यूनिवर्सिटी में जो मैंने देखा है काफी। राइट राइट। जो प्लेसमेंट सिस्टम था वो पहले इतना अच्छा नहीं था बट अभी काफी अच्छा हायरिंग हो रहा है हमारे हम्म। कैंपस से, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह सपोर्टिव भी है इस टाइम पे। तो फिर सॉरी सॉरी काफी टाइम पे मैंने जब भी इंटरव्यू देता मैं सॉरी बोलता था कि सर मेरा करा दो, मेरा नाम ब्लैकलिस्ट मत करो वगैरह, ये सब चीजें। तो तब काफी लोगों का प्लेसमेंट हो गया था टिल फैब तक। तो टिल फैब में एक बहुत पोजीशन आया। वर्टलेस फील होता है यार आफ्टर फैब, लाइक इफ यू आर लास्ट ईयर एंड इनटू द आई वुड से 8th सेमेस्टर और प्लेसमेंट और हाथ में कोई जॉब नहीं है, ऐसा लगता है हाँ यार लाइफ इज वर्थलेस। और आप हाँ अपने इवेंचुअली, और गुस्सा तब आता है और बुरा तब लगता है व्हेन यू सी योर फ्रेंड्स, सम ऑफ देयर आर ऑलरेडी इन दैट ट्रेनिंग, सम ऑफ देम यस ऑलरेडी यस, गोइंग एक्सप्लोरिंग, एंड दे एंड ऑलरेडी यू जॉइन आर इन द इन्फोसिस। लास्ट डोमेन जहाँ पे ऐसा वर्थलेस फील होता है कि बॉस आप इस लायक भी नहीं हो क्या। हाँ वही सीन हुआ आयुष जी। तो तुम्हें पता होगा जिसका दिसंबर के बाद प्लेसमेंट हो गया था उनको कंपनी बुलाना स्टार्ट कर राइट दिया था, और राइट। उनको एक्सेप्शनल था कि क्लास में आना नहीं चाहिए, ना आओ या करेक्ट। ना आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनका ऐसा था। और कुछ लिमिटेड ही स्टूडेंट्स रह गए थे तब जिनका प्लेसमेंट हुआ नहीं था। काफी लोग ऑफ कैंपस जाके गुड़गांव में इंटरव्यू दिए, 2 LPA 3 LPA में जॉब कर रहे हैं, वो भी नाइट शिफ्ट, यूएस आईटी रिक्रूटर का भी जॉब कर रहे हैं हमारे स्टूडेंट्स भी, मतलब हमारे मेरे बैचमेट में जो यूएस आईटी रिक्रूटर में जॉब में थे नाइट शिफ्ट। बट काफी छुटकारा मिल गया, पैसे अर्निंग कर रहे थे और हम लोग तो बेकार बैठे हुए थे। लग रहा था कि इतना खराब है क्या अपना, कि वो बंदा कभी कुछ किया नहीं है, उसका हो गया है और हम तो ऐसे बैठे हुए हैं, वो कमा रहा ऐसा है लगता है पैसे। यार घर वालों के पैसे उड़ा रहे हैं, और मतलब क्या ही है, लाइक कांट डिस्क्राइब दोस थिंग, बट मन में बहुत कुछ चलता है उस समय। और मिडिल क्लास फैमिली में पेरेंट्स हमेशा सोचते थे कि जॉब लग जाएगा, पूछते रहते कि हाँ। प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ। फिर मम्मी ऐसा थी कि मम्मी बोलते कोई बात नहीं तुम दूसरा देख लेना, या मम्मी को बोला ऐसा ऐसा है मैं बैंगलोर चले जाऊंगा, मेरा जॉब नहीं लग रहा, मम्मी बोला ठीक है तुम बैंगलोर चले जाना, वहाँ पे ऑफ कैंपस ट्राई कर लेना, ऐसा था। तो राइट। फैब के टाइम में OITI आया, जो कि मेरा मेरा अगर बोलते हो कि किसी ने मुझे अगर बोलते जहां से मैंने शुरुआत की अपना प्रोफेशनल राइट। जर्नी, वो हाँ मेरा हाँ। OITI था, जिस जहाँ पे मैंने काफी कुछ सीखा बिजनेस एनालिस्ट का रोल पे अगर बोलता हूँ। हम्म। तो वहाँ पे हम लोग का था कि वो कैंपस पे नहीं आता, वी हैव टू गो टू देयर ऑफिस फॉर द इंटरव्यू। तो एसोसिएट बिजनेस एनालिस्ट था और एसोसिएट क्वालिटी एनालिस्ट, तो उनका नाइट शिफ्ट था और पैकेज भी 3.5 या 3 के करीब, हम्म। 3 LP के करीब था शायद। तो मैंने बोला कि इसी में जाना है, तो आई वेंट टू मोहाली फॉर द इंटरव्यू। मेरा एप्टी क्लियर हो गया था और बाकी राउंड क्लियर हो गया था। वहां पे मुझे एक सर मिले थे, फिलहाल मैंने बात किया था, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। जिन्होंने मेरे फाइनल राउंड इंटरव्यू लिया था, उन्होंने मेरे रिज्यूमे काफी चेक किया था। मैंने रिज्यूमे काफी, मतलब उस टाइम पे था ना कॉलेज का, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल्स राइट। फंड्स डालते थे हम लोग, ऐसा ऐसा पता नहीं कहाँ से रैंडम उठा लेते थे। देन ही टोल्ड मी, उसका नाम मुझे चेक करना पड़ेगा, मैं मुझे एक बार चेक कर लेता हूँ उनका नाम, मैं हाँ मेंशन। हाँ श्योर, इफ हाँ यू वांट टू मेंशन प्लीज। यस यस, गिव मी मोमेंट। उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया था उस इंटरव्यू में। लेट मी सी हिज नेम। ओके, दीपक सिंह। उन्होंने मेरे पोस्ट में कमेंट भी किया था। वो भी प्रोजेक्ट मैनेजर है, अभी शायद कहीं पुणे में है। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, बात कर रहे थे काफी कुछ। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बिजनेस एनालिस्ट में एसक्यूएल वगैरह चाहिए, तो एसक्यूएल मुझे थोड़ा बहुत आता था। तो काफी का मतलब उनको कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा लगा मेरा, और बात करने का तरीका। देन ही टोल्ड, ही वाज आस्किंग मी अबाउट माय फैमिली बैकग्राउंड, नॉर्मली जो लास्ट राउंड में होता है। देन ही आस्क्ड मी तुम्हारे फादर रिटायर कब हो रहे हैं, आई मीन फादर डिफेंस में थे, मेरे पापा बीएसएफ में राइट थे, तो राइट। पूछ रहे थे। तो मैंने बोला कि 2018 में ही हो रहे पापा मेरे, अप्रैल या मार्च अप्रैल में हो जाएंगे रिटायर। देन he told me one, बोला कि hopefully your father will get a good news from you,
तुम्हारा ये सब की हो गया है, मतलब मुझे पता चल गया, ग्रीन सिग्नल मिल गया, उन्होंने ये बोला है। उन्होंने बोला कि तुम्हें इस चीज पे वर्क करना है, रिज्यूमे में ये सब पॉइंट देना नहीं है, जो हम लोग बुलेट स्केल देते थे राइट राइट। अपने को, मैंने 4 स्केल कर दिया, बट मेरा 4 स्केल था नहीं उस टाइम पे। बट 2.5 3 मतलब सीखने के लिए काफी था, तो मेरा हो गया था उस टाइम पे, मेरा करियर स्टार्ट हो गया अगर कॉर्पोरेट का बात किया जाए तब ओआईटीआई इंडिया में। नाइस। सो लाइक उस समय जब फर्स्ट जॉब मिली वहां पे, सो क्या लगा? लाइक थोड़ा रोड मैप बना, क्लैरिटी आई, एंड लाइक हाउ डू यू सी योर स्ट्रगल्स? मतलब ऐसा लगा कि ये वर्थ इट था, या फिर उस समय ये लगा कि अभी कहाँ जाना है? उस समय कुछ प्लान बनाया था कि अमेजोन में एक दिन मैं लैंड करूंगा एंड आई विल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ रोल इन तो अमेजोन? उस कंपनी में बॉन्ड था 18 मंथ का। तो इवेंचुअली 18 मंथ से पहले आप जा नहीं सकते थे। जा नहीं सकते, और हाँ। उनका ज्वाइनिंग करना था एज ए ट्रेनी तुम्हें मार्च से, हम्म और 6 महीना तुम्हें मार्च तक मतलब 6 महीना वो तुम्हें 8,000 देंगे इंटर्नशिप के लिए। और कॉलेज मेरा खत्म हो रहा था तब, शायद अप्रैल या मई में खत्म हो रहा था मेरा, तो मेरे पास 6 मंथ था 8,000 कमाने का। तो मैंने बोला मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी है नहीं, मैं फिर भी आके कॉलेज कैंपस में बैठा था, मुझे कोई कंपनी मिला नहीं अच्छा, जो अच्छा पोजीशन के लिए हायर कर रहा हो, सब सेल्स के लिए था तब। तो ओवर टाइम मैंने ज्वाइन कर लिया था 8,000 इंटर्नशिप के लिए, तो मेरे लिए इट्स फाइन कि अभी स्टार्ट करना है अपना राइट। जर्नी के ईयर का। तो एंड आफ्टर दैट जो भी चैलेंजेस आएंगे आई विल लुक इनटू इट। हाँ, तो उस टाइम पे हमारे कॉलेज से 2 बंदे सिलेक्ट हुए थे, मैं एक और एक हर्ष था, वो एसोसिएट सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए, और मैं एसोसिएट बिजनेस एनालिस्ट, तो हम दो लोग ज्वाइन कर लिए मार्च। तो मेरा ये एडवांटेज था कि मैंने 8 सेमेस्टर से पहले मैंने ज्वाइन कर लिया था वो कंपनी, तो मुझे इंटर्नशिप से मजा आ रहा था काम करने में। तो अब बात आ गया कि फिर से कॉलेज का सीन आ गया यहाँ पे, अभी अभी ऑडियंस को बताता हूँ वहाँ पे कॉलेज में फिर मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आया। तो पीछे नहीं छोड़ रहे थे। नहीं छोड़ रहे थे भाई, नहीं छोड़ रहे थे। तो अभी पता होगा कि 8 सेमेस्टर में ये अफवाह रहता है कि 75% नहीं चाहिए हम लोग को इंटरव्यू के अटेंडेंस लिए, का। अटेंडेंस राइट। का। अभी हाँ ये भी शायद सभी को पता होगा, अगर सभी कॉलेज में है उनको ही पता होगा कि तुम्हें 75% क्राइटेरिया चाहिए। अब अगर स्टूडेंट इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करता है, वो काफी टाइम कॉलेज आता नहीं था, और इंटरव्यू के लिए भी अगर आता भी था तो वो उसे थोड़ी पता है कि पंच इन करना है, पंच आउट करना है। मैं ऑब्वियस कॉलेज, गया। हाँ, तो हम तो कॉलेज जाते नहीं थे, मेरा परसेंटेज 75 से डाउन था। तो 8 सेमेस्टर तब पता चला कि 8 सेमेस्टर देना है एग्जाम सभी को। सॉरी सॉरी, उस टाइम पे था 7 सेमेस्टर का रिजल्ट, 7 सेमेस्टर का वो आ रहा था, एग्जाम होना था, तो मैं हाँ हाँ। शायद, हाँ, 7 सेमेस्टर का एग्जाम, तो 7 सेमेस्टर का मेरा पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा मेरा पहला जॉब लगा था या मैं पहले डिटेन हो गया, मुझे याद नहीं है, बट मैं डिटेन हो गया था। तो अभी ऑडियंस को बताता हूँ कि 7 सेमेस्टर का एग्जाम होता था दिसंबर में। हाँ करेक्ट। हाँ, तो ये था कि ओआईटीआई के जाने से पहले मैं डिटेन हो गया था, मेरे 12 पेपर बैकलॉग लग गया था। एक दिन लिस्ट आया सभी का कि भाई, वो कॉलेज में होता ना कि वो लग रहा है, डिटेन लिस्ट लग रहा है। हम तो विश्वास नहीं किए, जाके लिस्ट देखा कि भाई बस विशाल नाम 12, नाम है उसमें। और 12-15 लोग बस वो मतलब दे पा रहे थे सब सब्जेक्ट, बाकी सभी सब्जेक्ट में डिटेन, मैं भी डिटेन। मेरा एक तो जॉब नहीं लग रहा था, ऊपर से मेरा 7 सेमेस्टर पूरा डिटेन। ओ गॉड। और मैंने कंपनी ओआईटीआई में जब ज्वाइन किया था तो उन्होंने 6 सेमेस्टर के लिए का मतलब मार्कशीट मांगा था, क्योंकि बाकी कॉलेज में 7 सेमेस्टर का और 8 सेमेस्टर एक साथ लेते थे। राइट तो राइट। इनको पता नहीं था थोड़ा बहुत कि मैं डिटेन हूँ या नहीं हूँ, मैंने ज्वाइन भी कर लिया। सही तो है। मेरा बैकलॉग लग गया था, फिर कॉलेज वाले का सीन आया कि 8 सेमेस्टर में उन्होंने एग्जाम का वो रख दिया कि 8 सेमेस्टर और 7 सेमेस्टर दोनों आपको एक साथ देना है। और मेरे पास और एग्जाम का कोई गैप नहीं था कि अगले दिन तुम मतलब एक होता ना, मैं प्रिपरेशन करूँ 7 सेमेस्टर का, वो मेरे पास टाइम नहीं था, क्योंकि एक दिन के करेक्ट बाद दूसरा दिन एग्जाम है। और करेक्ट। 8 सेमेस्टर बैक के टू लिए बैक होता है। बैक टू बैक होता है। तो हम्म मैंने अपने कंपनी से 7 डेज का लीव लिया फॉर माई, मैंने अपने टीएल को बोला कि मुझे से छुट्टी चाहिए एग्जाम के लिए, मैंने लिया। तो आप सोच सकते हो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट का स्ट्रगल, राइट। उनको उनका जॉब लग गया। अब बात आया कि अगर मैं रिटेन हुआ हो गया हूँ, अब मुझे जॉब अगर हाथ से गया पूरा। हाँ हाँ हाँ, और 7 सेमेस्टर अगर मैंने एक सब्जेक्ट में बैकलॉग लगा दिया तो मेरा जॉब गया। राइट। और 7 सेमेस्टर का एग्जाम मुझे देना पड़ेगा अगले साल, मतलब पूरे, मतलब एक दिन में रात को 2-3 बजे तक हम स्टडी कर रहे थे, जो 2-3 काफी लोग स्टूडेंट्स थे उस टाइम पे। तो मतलब एग्जाम देके बस भगवान का लाख शुक्र है कि मैंने 7 सेमेस्टर क्लियर कर दिया था अच्छे रैंकिंग से, अच्छा सीजीपी भी आ गया था।
तो ये था मेरा कॉलेज लाइफ का स्ट्रगल, बैलेंसिंग, वर्क बैलेंस बोलो, कॉलेज लाइफ बैलेंस था। तो ये Yeah, था but मेरा I सीन। would say these struggles, basically, due to these struggles, you are here. I would say. काफी क्योंकि लर्निंग। इवेंचुअली आप इनिशियली अगर इतना स्ट्रगल कर लेते हो ना, यू हम्म। फील लाइक यू आर मच मोर वर्थ एज कंपेयर टू वट एवर योर सराउंडिंग्स आर, क्योंकि आप वो सब पहले ही सिचुएशन में डाइव कर लेते हो। करेक्ट करेक्ट। तो हम लोग को बस हो गया था, जॉब जॉब भी था तब, और फिर मेरा ये रिटेन वाला लिस्ट भी हट गया था, हो गया। फिर मैंने ओआईटीआई से लेकर जर्नी किया। तो आयुष, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट माय फर्स्ट कंपनी, देन आई वुड लव टू शेयर विद यू। नाउ द ओआईटीआई कम्स इन। Anytime, no, it's okay. I mean, you can go with the next company. I think, यार, see, mainly I would say कि जो हमारे people who are struggling और जो similar phase में है, like you are हम्म हम्म currently, ठीक, हम्म। बहुत लोग होते हैं who are like potential one, but eventually they are struggling with their jobs, like they were not going to get the jobs, or राइट। they are struggling to get the jobs basically. So I mean, if you can continue whatever you feel like, I mean, I think कि आप आगे बताओगे तो थोड़ा मोटिवेशन थोड़ा आएगा। ठीक है। सो अगर मेरी तरह अगर स्ट्रगल करते हो तो आई वुड से कि फर्स्ट अपने आप को प्रायोरिटी रखो कि कहीं पे भी अगर आपका जॉब लग रहा हो, मैं सेल्स का बात नहीं, पहले अपने इंटरेस्ट को चूज करो। राइट। फिर चाहे अगर पैकेज कम हो, कोई मायने नहीं रखता पैकेज, ठीक है। एक टाइम पे होता है कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बॉटम। जो काफी लोग मैंने देखा है लिंक्डइन में भी, आयुष का भी स्ट्रगल वही था, मेरा भी वही राइट। स्ट्रगल था। हम लोग ने स्टार्टिंग से ही एक छोटे से स्टार्ट किया है। कहीं पे भी अगर आपका अपॉर्चुनिटी मिलता हो, ग्रैब इट। आपका अगर इंटरेस्ट उस प्रोफाइल में है, ले लो। जरूरी नहीं है राइट। कि आपका इतना अच्छा टेक्निकल स्किल्स है और आपको मिल नहीं रहा पैकेज, पहले वहां पे जाओ, आप वर्क कल्चर पता चले, क्योंकि करेक्ट। कॉर्पोरेट और स्टूडेंट लाइफ काफी अलग है। आई एग्री यार। वही चीज है, जब तक आप नदी में कूदोगे नहीं या जब तक आप ओशन में कूदोगे नहीं, आप तैरना कैसे सीखोगे? हाँ, आप एज्यूम नहीं कर सकते हो, आप स्टूडेंट, राइट। आप अपने आप को रखते हो कि हाँ मैं सब कुछ इससे मैं डिजर्व करता हूँ। हाँ करते हो, पहले आप एक जॉब ले लो, वहां पे थोड़ा सीख लो। अगर बॉन्ड नहीं है, बॉन्ड वाला मेरा सीन अलग था, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मुझे कोई पोजीशन मिल नहीं रहा था, तो मैं गया हूँ। तो आपको चाहिए कहीं पे मिलता, आप ग्रैब इट, वहां से लर्निंग करो, क्योंकि वर्क आप जहाँ पे जाओगे तो आपको सीखने को मिलेगा। व्हेन मैंने ओआईटीआई ज्वाइन किया था, वो डोमेन था एनर्जी डोमेन। इफ यू स्टूडेंट्स, अगर काफी एम्प्लॉयर को पता नहीं है कि एनर्जी डोमेन होता है कि नॉर्थ अमेरिका रीजन में होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी प्राइवेट होता है। तो द ओटीआई के पास उनका वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी था, दे हैव देयर ओन सॉफ्टवेयर टू मैनेज द इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम, कितना बिल हुआ। वो उनका क्लाइंट काफी बड़े बड़े कंपनीज भी थे। तो मुझे पता, मैंने वहां पे जो बिजनेस एनालिस्ट दो टाइप के होते हैं। एक होता है जो एसक्यूएल, पाइथन, टैबलू ये सब मांगता है, क्विक सेट वगैरह। दूसरा बिजनेस एनालिस्ट होता है जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एजाइल मैथोलॉजी फॉलो करता है। जैसे कि जो कोर बिजनेस एनालिस्ट अगर बोला जाए तो amazon गूगल वाले टेक्निकल स्किल्स मांगते हैं, ठीक है। और अगर आप टीसीएस देख लो, देन कैप जेमिनी, विप्रो, उनका बिजनेस एनालिस्ट का प्रोफाइल अलग रहता है, जो कि करेक्ट। वो उनका बेसिकली रिक्वायरमेंट। क्लाइंट और उनका जो करेक्ट। डेवलपर्स होते हैं, बेसिकली वो रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करना होता है इन ले फॉर्म और बिजनेस टाइप में। हाँ करेक्ट। तो मेरे हाँ। पास वो ओपन हैंड था, उस कंपनी में ओआईटीआई पे, वो एजाइल को फॉलो कर रहा था। वहां पे हम लोग, मेरा जो बिजनेस एनालिस्ट का प्रोफाइल था, वहां पे मैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहा था। मैं अपने स्टेक होल्डर से बात कर रहा था, क्या क्या रिक्वायरमेंट की, ये प्रोडक्ट में ये डिफेक्ट है, इस पे क्या काम करना चाहिए। तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि आई कैन रीच आउट टू द क्वालिटी टीम, आई कैन रीच आउट टू द डेप टीम की इम्प्लीमेंट दो चेंजेस। तो वी हैव टू सिस्टम। उस टाइम पे एक प्रोड सिस्टम था और एक डेप सिस्टम था। तो एक बेटा टेस्टिंग के लिए भी हम लोग यूज करते थे। मतलब बिजनेस बिजनेस एनालिस्ट काफी वास्ट है, उस पर टेस्टिंग भी आ जाता है। अगर मैं इस वाले फेज को बोलूं तो उस पे राइट। हम लोग रिग्रेशन टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, मैनुअल टेस्टिंग भी करते थे। बाकी अगर लगता था कि ये प्रोडक्शन में ये फीचर्स गलत है, तो हम लोग वो रिपोर्ट करते थे डेप टीम को, डेवलपर टीम को। तो वहां पे मुझे काफी कुछ सीखने को मिला। मतलब जो मेरे एक स्टेक होल्डर था, वो था गैब्रियल होस्टमैन। तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर था। अगर गैब्रियल का भी एक बात बताता हूँ कि गैब यूएसए है अभी, वो भी अमेजोन में ही है। तो मैंने जब अमेजोन ज्वाइन किया था, 2 महीने बाद वो मेरा जो मैनेजर था, वो भी अमेजोन में एडब्ल्यूएस में ज्वाइन किया, प्रोजेक्ट मैनेजर। ओह नाइस, व्हाट अ नाइस। कोइंसिडेंस।
हमारा अभी भी बात होता है। तो वो हाँ, मैनेजर मुझे इतना अच्छा लगा कि मतलब और मेरे पास मेरा जो मेंटर था, मेरा जो टीएल था, वो अंकुश था। तो अंकुश गूगल में जॉब करता था, फिर वो ओआईटीआई में आया था। अंकुश ने मुझे काफी ओपन हैंड दे दिया, बोला कि विशाल तुझे जो चाहिए कर। वो मुझे सिखाता रहता था डेली बेसिस पे। और यार ऐसे किक स्टार्टिंग में चाहिए होते हैं, टू बी हाँ, वेरी ऑनेस्ट। हाँ। एंड और ये भी एक स्टूडेंट्स और एम्प्लॉयर्स को ये भी एक मैं बताना चाहूंगा सजेशन, कि अगर इफ यू आर वर्किंग एट इन एनी कंपनी, जस्ट नोट इट डाउन व्हाट यू आर डूइंग। काफी टाइम राइट। होता है कि यू आर नॉट नोटिंग इट डाउन। मेरा स्टार्टिंग था कि मैं जब ओआईटीआई ज्वाइन किया था, मुझे स्विच करना था, मुझे नाइट शिफ्ट मुझसे हो नहीं रहा था, क्योंकि मेरे पास एक बॉन्ड था, मैं बॉन्ड तोड़ नहीं सकता, मेरे पास नाइट शिफ्ट था, मेरा सोशल लाइफ खत्म हो गया था। मेरा रिलेशनशिप, अगर मैं बोलूँ, वो एक्स रिलेशनशिप जो भी है, उसको भी मेंटेन नहीं कर पा रहा था, इस ऐसा पॉइंट सिचुएशन पे था। थोड़ी देर बाद आता बट तो फाइनली मेंशन कर दिया। हाँ, तो ये चीज था कि मैं क्या बताऊं कि मैं नाइट शिफ्ट करता था, मेरे लंच होता नहीं था, ब्रेकफास्ट स्किप होता था, मतलब स्ट्रगल तो कर रहा था अपने, मुझे पैसा कमाना था, सब कुछ करना था। और मतलब जो बट जो, एक जो नाइट स्टेबिलिटी शिफ्ट। भी चाहिए होती है यार एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि आप चाहे जितना पैसा कमा लो, मैं बोलता हूँ, या चाहे जितनी मतलब कंपनी अच्छी पा लो, बट व्हेन यू डोंट फील लाइक यू आर गुड फ्रॉम इनसाइड, आई थिंक इट्स वर्थलेस। यस, यस। तो नाइट शिफ्ट था, तो ऐसा था कि मुझे निकलना था। तो मेरा जो स्टेक होल्डर रिक्वेस्टेड है, उनसे मैंने बात किया। मुझे हर बिजनेस प्रोसेस का, मैं अगर जो काम कर रहा हूँ, मेरा ये हमेशा एक फंडामेंटल और प्रिंसिपल होता है, अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, आई वांट टू नो द बैकग्राउंड ऑफ इट, हाउ इट गोना इम्पैक्ट राइट। द यूजर। नाइस। एंड हाँ। वो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, एंड कहाँ पे हो रहा है। देन आई आस्क्ड माय प्रोजेक्ट मैनेजर, बिकॉज आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। मैं हम्म। सिंपली एक प्रोसेस को रन कर रहा था, बट बैकग्राउंड में ए से स्टार्टिंग में वो लोग कैसे प्रोजेक्ट को ले रहे थे और कैसे डिलीवर कर रहे थे कस्टमर को, मुझे पता नहीं था। एंड मोस्ट ऑफ दिस, अभी भी काफी सर्विस बेस्ड कंपनी में माना जाए, राइट। काफी लोग को पता नहीं कि बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। यू करेक्ट। गॉट द टास्क, यू आर डूइंग इट, डूइंग इट राइट। यू आर गेटिंग द सैलरी, दैट्स इट। बट इट इज ए राइट। रॉन्ग। यू हैव टू नो हाउ यू आर गोना, हाउ तुम्हारा कंट्रीब्यूट वहां पे क्या है। करेक्ट, सो व्हाट इज द होल प्रोडक्ट इज, आप पूरा राइट। प्रोडक्ट क्या है एंड व्हाट आर यू कंट्रीब्यूटिंग इन दैट प्रोडक्ट। एंड यूजुअली आई सी मेनली बहुत लोग करते हैं, प्रोडक्ट इज ओशन, हम्म। उन्होंने हाँ, एक छोटा सा कुछ कर दिया एंड दे फील लाइक नो वाओ, बट यू डोंट नो कि वो वाओ आपका कितना छोटा वाओ है। एंड करेक्ट। इफ यू थिंक अबाउट इट, you will get so much of explore, like I would say, मतलब एक्सप्लोर करना है किसी चीज को, आई वुड से यू विल गेट सो मच ऑफ एक्सप्लोरेशन इन दैट केस। राइट, राइट। तो देन ही वाज वेरी सपोर्टिव, मेरे काफी स्ट्रिक्ट, वाइस प्रेसिडेंट तक मेरा अच्छा था टर्म्स एंड जो बात में करता था उनके साथ। राइट। तो दे आई टोल्ड ग्रूमिंग देम। आपकी बेसिकली वहां से स्टार्ट हो गई थी। राइट, राइट। एंड द वाइस प्रेसिडेंट, उन्होंने मुझे काफी एंडोर्स भी किया है, लिंक्डइन में रिकमेंडेशन भी किया है। तो आई आस्क्ड देम कि सी आई एम डूइंग दिस पार्ट, आई वांट टू नो द एग्जैक्ट द प्रोडक्ट, हाउ स्टार्टिंग कैसे हो रहा था, हाउ वी आर टेकिंग दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम द सेल्स बैकग्राउंड से। तो दे शेयर्ड मी सम डॉक्यूमेंट्स, जो कि काफी, अगर मैं मानता हूँ, काफी कंपनीज में बड़े लोग आपको भाव नहीं देंगे, तुम्हें कोई डॉक्यूमेंट शेयर नहीं करेंगे। राइट। उन्होंने मुझे बिजनेस प्रोसेस के बारे में बताया कि हम लोग पहले ये प्रपोजल देते थे अपने क्लाइंट को, क्लाइंट यहाँ पे पीच इन करते, रिक्वायरमेंट करते थे, तो इसी हिसाब से हमने डॉक्यूमेंट बनाए इतने बड़े। उस डॉक्यूमेंट में क्या क्या फीचर होना चाहिए, ये ऐसा ऐसा है, और जब हो जाता सिस्टम में ये कैसा दिखेगा। सो करेक्ट। ये मेरा था कि मुझे सब कुछ तब मुझे पता हो गया। मैं हर टाइम पे एक मेरा इतना बड़ा कॉपी था, उसमें हर दिन मैं अपना नोट करता, रात को जब काम खत्म हो जाता मैं लिखता रहता था कि मैंने क्या आज क्या काम किया है, इस पे क्या चीज इम्पैक्ट पड़ता है, और ये जॉब रोल मेरे नेक्स्ट कंपनी के लिए कैसा हेल्पफुल रहेगा। क्या हेल्पफुल रहेगा, राइट। एक रोड मैप मैंने बना के रख दिया था, क्योंकि अगर तुम बड़े कंपनी में जाओगे, कि कंपनी तुम्हारा हर प्रोसेस के बारे में जानना चाहेगा, जो कि अमेजोन ने भी मेरे करेक्ट। पूछा। हाँ, उन्होंने अमेजोन पे आते हैं। व्हाट डू यू थिंक, अमेजोन पे इंटरव्यू कैसा गया था, लाइक थोड़ा आप वहां पे आओ कि जब आप कंपनी स्विच करने वाले थे, आप अमेजोन को कहाँ ढूंढे, हाउ डिड यू लैंड इट इनटू द अमेजोन, एंड व्हाट आर द इंटरव्यूज प्रोसेस, लाइक हाउ वाज दैट जर्नी ऑफ द ट्रांजिशन फेज। ओके, तो मेरा बॉन्ड खत्म हो गया। मेरा अंकुश ने मुझे पूछ किया कि विशाल तू यू डिजर्व बेटर, तुम और थोड़ा बहुत देखो सब जगह पे। तो मैंने देखना स्टार्ट किया था। मैंने अपना नौकरी, अगर प्रोफाइल का बात किया जाए, नौकरी प्रोफाइल में एक चीज होता है कि अगर तुम करंट लोकेशन दोगे, उसी लोकेशन तुम्हारा इंटरव्यू कॉल आएगा। होता है कि अगर मान के चलो कि मैं
जैसे कि कंपनी में कैपजेमिनी में जॉब करता है, उसका जॉब लोकेशन मान के चलो दिल्ली में, तो अगर उसने दिल्ली का लोकेशन दिया, करंट जॉब लोकेशन, तो दिल्ली से उसका इंटरव्यू आएगा। तो ओके। मुझे अंकुश ने सजेस्ट किया कि तुम अपना जॉब लोकेशन चेंज करके बैंगलोर डालो। तो मैंने अपना नौकरी में प्रोफाइल को 100% किया, मैंने नौकरी में अपडेट कर दिया। फिर मेरा बॉन्ड खत्म होने वाला था सितंबर 2019। तो मुझे था कि मुझे नाइट शिफ्ट से निकलना, चाहे मेरा जॉब चले जाए, मैं 1 महीने में निकाल लूंगा कोई इंटरव्यू। मैं 1 हफ्ते का छुट्टी लिया, मैंने टीएल को बोला मुझे बैंगलोर जाना है, बोला कि ठीक है यू कैन गो। मैंने बैंगलोर गया, मेरे दोस्त रहते थे यहाँ पे। मैंने बैंगलोर को ऑब्जर्व किया कि हाउ दिस सिटी रन्स, हाउ द इंटरव्यू प्रोसेस वर्क्स इन। तो मैंने वॉक इन 2-3 दिया। मैंने एक ब्लैकबक कंपनी में भी इंटरव्यू दिया था, उसमें एक ब्लैकबक का अच्छा कंपनी बैंगलोर में। तो मुझे पता चल गया कि उनको इमीडिएट हायरिंग चाहिए। जब प्री कोविड के टाइम में वो लोग इमीडिएट हायरिंग मांगते थे बैंगलोर में, जितना भी राइट। कंपनीज। तो मुझे पता चल गया कि आई हैव ए स्कोप, मुझे करना पड़ेगा, और मेरे पास नोटिस पीरियड भी देना पड़ेगा, मेरे पास था नहीं। तो जैसे ही मेरा 1 महीना बाद जॉब खत्म होना है ओआरटीआई में, तो मैंने रिजाइन मतलब डालना स्टार्ट करने का सोच ही लिया था। तो मैंने एक दिन रैंडमली, मैं दोस्त का चिल कर रहा था बैंगलोर में, जेपी नगर में। मेरा एक इंटरव्यू कॉल आ गया कि मतलब कल मेरा फ्लाइट है, परसों मेरा इंटरव्यू है अमेजोन में। ठीक है, तो मेरे पास एक टफ कॉल था, या तो मैं फ्लाइट कैंसिल करूं और इंटरव्यू के लिए दूं। और तो इवेंचुअली यू आर नॉट श्योर कि वो अमेजोन में होगा भी कि नहीं। नहीं होगा कि होगा रिस्क भी है नहीं। भाई, रिस्क रिस्क है। है, रिस्क है, और मेरे पास छुट्टी भी नहीं था उस टाइम पे। हाँ, तो मैं अपने दोस्त को पूछा, मेरे फ्लैटमेट्स को। तो उन्होंने मुझे बोला कि जो बैंगलोर में थे, बोल के कि तू रुक जा, तू इंटरव्यू दे दे, बहुत बड़ा कंपनी है। मैंने बोला कि करेक्ट। मैंने, हाँ। तो मैंने काफी सोचा, मैंने बोला कि देखता हूँ, नेक्स्ट टाइम अपॉर्चुनिटी अगर मिल जाए। मैंने बोला ठीक है, मैंने रिक्रूटर को एक ईमेल कर दिया कि मैं जा रहा हूँ, क्या आप मेरा इंटरव्यू बाद में ले सकते हो, ऐसा ऐसा, मतलब एक्सक्यूज। और रिक्रूटर ने कभी रिप्लाई नहीं किया था, जैसे अमेजोन के काफी टाइम होता है, रिक्रूटर ने रिप्लाई नहीं, क्योंकि बल्क में करेक्ट। शेड्यूल किया था वॉक इन शेड्यूल इंटरव्यू। करते हैं, राइट। हाँ क्योंकि मैंने इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ था, पहले एफटी राउंड देना पड़ा था, वो क्लियर हो गया था, तब मेरा था कि मेरा राउंड क्लियर हो गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा नेक्स्ट डे आफ्टर टुमारो तुम्हारा इंटरव्यू है। मैं दिया नहीं, फिर मैं आ गया अपने कंपनी में। मैंने वहां फिर मैं चंडीगढ़ मोहाली में आ गया, मैंने रिजाइन डाल दिया, क्योंकि मुझे अपना बॉन्ड कंप्लीट करना है। और बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद मैंने बैंगलोर में ने ये सोच के जाना था कि मेरे पास जॉब नहीं, वहां पे इंटरव्यू निकालना है। मैंने उस वो राउंड मेरा क्लियर, मतलब वॉक इन इंटरव्यू दिया नहीं। तो मेरे पास वो मेल आया नहीं। मैंने फिर भी मेल करता रहा कि मैं ऐसे ऐसे बैंगलोर आऊंगा, क्या आप मेरे इंटरव्यू ले सकते हो। तो अगर ऑडियंस को पता नहीं है, मैं विदाउट जॉब बैंगलोर गया था। ठीक है, मैंने रिजाइन कर दिया था, मेरे पास जॉब नहीं था। मैंने जैसे बैंगलोर थर्सडे पहुंचा, मेरा लक अच्छा, थर्सडे में मेरे पास ईमेल आया कि तुम्हारा मंडे को इंटरव्यू है अमेजोन में। तो मैं जॉबलेस 2 दिन था। मैं फिर गया वॉक इन, वो इंटरव्यू था मतलब वॉक इन नहीं, जिसका एफटी क्लियर हो गया था मेरा। राइट है। हाँ, तो मेरा इंटरव्यू है, तो मेरा इंटरव्यू हो शेड्यूल्ड गया। इंटरव्यू था पहले, ऑनलाइन नहीं होते थे, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू गो एंड गिव द इंटरव्यू इन द कंपनी। हाँ, सो तो वैसा वो, था बेसिकली। हाँ, हाँ। तो अगर ये आपके पास, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है ना, सब कुछ हो सकता है। मेरे पास वो कॉन्फिडेंस था। मैं विद जॉब क्विट करके, मेरे पास एजुकेशन लोन का बर्डन था, मैंने जॉब क्विट करके बैंगलोर आया था कि मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लूंगा अपना। आपको इतना मेरा कॉन्फिडेंस था, मैं अपनों को बिल्ड कर दिया था। मैं जो अपने पहला कंपनी मुझे इतना बूस्ट कर दिया था कॉन्फिडेंस, कि मुझे अपने आप पे था कि हो जाएगा तेरा। और मेरा फिर गया, मेरा 2-3 राउंड था अमेजोन में, फिर मेरा निकल गया था। और अमेजोन का ये अच्छा लगा था कि उन्होंने सेम डे में बता दिया कि आपका क्लियर हो गया है, ये डॉक्यूमेंट वगैरह आपको भेजना है, ये आपका। Awesome. कैसी हाँ, फीलिंग थी उस समय, लाइक what was you feeling at that point of time? और तब सबसे पहले मम्मी को फोन लगाया। मम्मी मतलब जैसे ही हो गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था। मैं पहला जब राउंड इंटरव्यू पैनल में गया था, अगर अमेजोन इन मैंने जितने भी कंपनीज में इंटरव्यू दिया, बट अमेजोन के जो इंटरव्यूअर होते हैं, दे आर वेरी चिल्ड। उन्होंने मुझे चिल न, 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 ऐसे गप्पे शप्पे कर रहे थे, पानी दे रहे थे, कॉफी पियो, ये करो। मतलब तुम्हें एक बना दिया था कि कंफर्ट जोन में। मैं फिर भी एक मेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं था। आई स्ट्रगल विथ द इंटरव्यू, कैसे जाएगा। आई वाज नॉट कॉन्फिडेंस कि आई विल क्लियर दिस राउंड। आई थिंक वो नर्वसनेस था, आई वुड या से बिकॉज नर्वस हो गए थे थोड़ा। बिकॉज यू आर सिटिंग फॉर एनी बिग कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम। करेक्ट, करेक्ट, फर्स्ट टाइम एंड दिस बिग ह्यूज कंपनी, आई हाँ, वुड से। या so then I cleared the round. I was happy. I called my mom. I told her कि ऐसा ऐसा हो गया है. She was very much happy.
देन उन्होंने कहा कि तेरा जो भी तुमने स्ट्रगल किया है वो हो गया, बाकी मैंने अपने क्लोज वन को फोन करके इन्फॉर्म किया। सो काफी लोग खुश थे मेरे वो हाँ, तो जेपी नगर वाले फ्लैटमेट्स जो भी थे वो लोग भी मेरे फ्रेंड्स थे, सभी खुश, काफी खुश, तो मैं भी खुश था ऑब्वियसली। या वो बस। फीलिंग अलग होती है, पता है क्या? आई मीन आई स्टिल रिमेम्बर कि जब आफ्टर द कॉलेज व्हेन आई गॉट आउट, मतलब जून में मेरा कॉलेज खत्म हुआ था, एंड हम्म। उसके बाद मैंने 6 महीने 8 महीने इंटर्नशिप की थी। एंड एक कंपनी थी रेड कारपेट हब, उनका सीईओ थे संदीप श्रीवास्तव। भाई उस बंदे ने ना मुझे यहाँ से यहाँ पहुंचा दिया था, राइट? हाँ जो डंडा मार, जैसे अभी यू टॉक्ड अबाउट योर मैनेजर, राइट? कि हाँ। हाउ ही हेल्प, वो मेरे लिए इस समय आई वुड से, अगर मेरा कैरियर कहीं ग्राफ ऐसे हुआ है फ्रॉम दिस टू दिस हुआ है ना, आई वुड से दैट ड्यू टू दैट पर्सन ओनली। कि ही वाज लाइक कि ग्राइंड करो, करो, तुम कर लोगे, लाइक। एंड स्टार्टिंग में बहुत गाली, मतलब बहुत गाली तो नहीं बोलूंगा, बहुत सुनाते थे वो यार, लाइक तुम क्या हो, कॉलेज हो, कैसे कर रहे हो, एंड मुझे बहुत गुस्सा आता था यार, क्या ये क्यों है, मतलब। लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर 3 to 4 months, आई रियलाइज कि वो अगर ना होता ना, तो वो जो ट्रांजिशन था मेरा, वो ना हम्म। होता। एंड जो अभी फील आप कर रहे थे वाइल्ड टेलिंग, तो मुझे वो याद आ रहा था जब मैं उसको छोड़ के, और मेरी भी सिमिलर जर्नी थी जैसे आपकी फ्लाइट वाली थी। हाँ हाँ। मेरा टीसीएस में इंटरव्यू शेड्यूल्ड हुआ 10th को, मेरा भी एप्टी क्लियर हुआ 10th को, मेरा इंटरव्यू शेड्यूल्ड हुआ 10th of फरवरी को। एंड ओके। 10th फरवरी को मेरा होता है बर्थडे। हाँ। और मुझे दिल्ली में था मैं, ठीक है। हम्म। मेरी 3 या 4 को, 31st को मेरा इंटर्नशिप खत्म हो रहा था, 31st of जनवरी को, 3 और 4 को मेरी ट्रेन थी वापसी की, ओके। ठीक है। एंड 31st या फर्स्ट 31st को इंटर्नशिप खत्म हुआ, फर्स्ट को रिजल्ट आया मेरा एप्टी का, और सेकंड को मेल आ गया कि आपका 10th को आपका इंटरव्यू है। ओके, वो कहाँ आई पे वाज था? लाइक यार, दिल्ली में ही है वो भी। ओके। वो भी ओके। दिल्ली में ही है कहीं पे, मतलब वो भी ओके। इस समय ऑनलाइन नहीं था, वो भी दिल्ली में कहीं नॉलेज, आई गेस नोएडा नॉलेज पार्क में था वो। अब हम्म। यार जाना है घर, ठीक है। हम्म। हम्म। ऑब्वियसली मैं भी जॉबलेस हो गया था उस समय 10 दिन के लिए। तो वो हाँ 2 दिन ना, मतलब टीचर से थोड़ा टाइम लेता है ऑब्वियसली। हाँ तो हाँ। वो मैंने टिकट वगैरह कैंसिल कराई, हम्म। मैं 10th को बर्थडे वाले दिन आशीर्वाद वगैरह लिया घर वालों से, गॉन, वेंट एंड गेव द इंटरव्यू। इट वेंट प्रिटी वेल यार, फर्स्ट जॉब होती है, एंड राइट राइट। इवेंचुअली ऐसे हम्म। ऑफ कैंपस वाला था वो नियम रूल। एंड देन आई गेव द इंटरव्यू, 10 दिन बाद मेरा रिजल्ट आया दैट यू आर सिलेक्टेड, यू आर हायर्ड, एंड आई वाज लाइक, तब तो घर आ गया था, मतलब जिस दिन मैंने हाँ इंटरव्यू दिया था उसी दिन रात में ही मैं घर आ गया था। मैं हाँ। को कि वो आई वाज लाइक यार अच्छा गया है, हो जाएगा, एंड इवेंचुअली समय हो गया था। देन वो फील ही अलग होती है यार। आई वुड से। वही 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 चीज। फिर तो amazon में स्टार्टिंग हो गया मेरा, तो डेटा सेट एनालिस्ट ज्वाइन मैंने किया था amazon में। एंड यहाँ पे आने आने के बेंगलोर का देखो कल्चर एक अलग है, मतलब जो नॉर्थ में मुझे वाइब्स मिल रहा था और जो बैंगलोर में जो वाइब्स मिल रहा था वो काफी डिफरेंट था। इफ करेक्ट। मैं अगर एयर में मतलब ऐसे लोगों से मिला ना, मतलब पीपल्स आर कीप गोसिपिंग अबाउट द न्यू टेक्नोलॉजी, इफ यू गो टू बैंगलोर एयरपोर्ट यू विल सी, यू विल टॉक टू देम। वो काफी एक मतलब बन गया था कि एक यहाँ पे प्रोफेशनल जर्नी स्टार्ट होता है अच्छे से। तो ये बैंगलोर ने मुझे काफी कुछ सिखाने को मिला जो कि मुझे वहां पे मिल नहीं रहा था। बैंगलोर आने के बाद जितना भी मैं प्रोफेशनल अगर डेवलप करते हो ना, मतलब ग्राफ इतना बड़ा बैंगलोर में करेक्ट। आने के बाद हो गया था, लोगों से बैंगलोर मिलते। सिटी वाइब भी अलग है यार। मैं एक्चुअली बैंगलोर तो हूँ नहीं, मेरा लोकेशन गुड़गांव है, बट हम्म। बैंगलोर में काफी आया गया हूँ। नेक्स्ट टाइम आऊंगा तो डेफिनेटली मिलूंगा। हाँ हाँ, ठीक जरूर है। जरूर। क्योंकि एंड वो अलग ही वाइब है यार वहाँ की। आई कंप्लीटली एग्री विथ यू। ब्लैक पीपल आर जस्ट बॉस, कुछ नया करते हैं यार, कुछ नया राइट। करके कुछ हाँ तोड़ते हैं। हाँ। ऐसा होता है वहाँ का भाई। तो हाँ ये चीज था फिर। एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि जहाँ पे मुझे टीम मिला था, जो मेरा पहला टीम अमेजोन में था, तो हर बंदे के पास कोई ना कोई स्किल ऐसा था, कुछ ना कुछ कर लेता था। तो मैं उस टाइम पे छोटा सा था बंदा बोलने से, मतलब अभी रिसेंटली पास आउट, ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, बट राइट। दे आर वेरी वेलकमिंग। मुझे सीखने को मिला उनसे, मेरे मतलब एक जो टेक्निकल स्किल्स होता उनके पास। तो राइट। ऐसा मुझे एक अभिलाष एक मिला था, अभिलाष जो अभी अमेजोन का प्राइम वीडियो में बीआई रोल में है, तो उसने भी काफी कुछ सिखाया मुझे। तो यहाँ पे मेरा फिर इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो गया। उसने मुझे बताया कहाँ पे क्या चीज फोकस करना है, धीरे धीरे मेरा स्टार्ट हो गया। और मेरा मैनेजर भी काफी सपोर्टिव था इस चीजों में। नाइस यार, आई मीन योर जर्नी इज एन एक्सेप्शनल, आई वुड से।
struggle coming from the national championship chess background, taking a home loan, sorry, education loan, taking या education loan, and eventually detain हुए सब कुछ हुआ लाइफ में लाइफ में बहुत कुछ हुआ है बहुत कुछ हो गया है या अब जो है अब मैं सेट हूँ नाउ हाँ आई नो हाउ टू रिएक्ट इन द सिचुएशन एंड राइट आई वुड से कि पता क्या लाइक अगर आप कोई भी बड़े इंसान को देखोगे कोई भी जो बड़ा कंपनी में एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद पहुंचता है ठीक है कुछ लोग हाँ होते हैं जो इवेंचुअली जल्दी पहुंच जाते हैं एंड सम पीपल लाइक अस दोस लाइक फॉर देम हु हैव टू ग्राइंड राइट आई वुड से एंड जब तक आप ग्राइंड नहीं करोगे ना आई फील कि आप वर्थ नहीं समझोगे यार बहुत लोग मेहनत से भागते भी हैं ऐसा लगता है नहीं राइट यार रिस्क नहीं है वो नहीं है ये नहीं है और कुछ किस्मत होती है मतलब आई वुड से माँ बाप का आशीर्वाद होता है हाँ ये चीज होता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए थिंकिंग कि मैं पैसा कमा रहा हूँ बस मेरा ये खत्म है इतना मिल रहा है मैं सेटिस्फाई हूँ ऐसा होने से कभी कुछ नहीं होगा अभी क्या लगता है विशाल आपको लाइक अभी आप एक पोजीशन पे हो लाइक यू आर अ प्रोग्राम मैनेजर एज ऑफ नाउ एंड हम्म बेसिक आई आई आप इतने बड़े कंपनी में हो बैंगलोर में हो प्रोग्राम मैनेजर हो नाउ व्हाट यू फील व्हाट्स नेक्स्ट इन योर लाइफ या तो मेरे शादी छोड़ पास के ना ना भाई वो अभी तो अभी कहा या ये सब चीजों पे भी नहीं मेन चीज है कि अमेजोन पे मैंने सोच के रखा है कि मैं अगर आयुष अगर देखोगे सबसे एक चीज अगर देखोगे बड़े बड़े जो भी जॉब रोल में डायरेक्टर लेवल पे हो गया राइट दे आर दे आर स्टेबल इन देयर जॉब सो राइट फर्स्ट प्रिंसिपल आता है कि डोंट स्विच एवरी टाइम अगर तुम्हें बड़ा लेवल पे अगर जाना है करेक्ट तो वो कंपनी तुम्हें ट्रस्ट करने के बाद वो तुम्हें रोल देगा हम्म ठीक है तो मेरा अमेजोन में यही है कि मुझे यहाँ से और सीनियर मैनेजर के रोल पे जाना है हम्म फिर अगर मैं रिलोकेट होता हूँ तो रिलोकेट होऊंगा या तो मैं गूगल माइक्रोसॉफ्ट अगर मुझे मिलता है कोई भी बड़ा कंपनी में तो वहीं पे देखूंगा बट एज ए प्रोग्राम मैनेजर वेयर आई लीड द प्रोसेस करेक्ट ये चीज है मैंने ये सोचा नहीं कि कभी स्विच करने का मैंने सोचा भी नहीं है क्योंकि दे आर पेइंग मी वेरी वेल मेरा वर्क बैलेंस सब कुछ सही है मैं ट्रैवल भी कर रहा हूँ छुट्टी भी ले रहा हूँ मेरा ऐसा नहीं कि अगर मैं ऑफिस में काम खत्म करके मैं चैन का नींद सो पा रहा हूँ इतना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि रात को मैं अच्छे से चैन करेक्ट से सो पा रहा हूँ करेक्ट तो अमेजोन का ये चीजें है कि अगर आप टिप्स बताता हूँ अगर इंटरव्यू क्लियर करना चाहते हो तो अमेजोन सबसे पहले आपका रिज्यूमे चेक करेगा तो हमारा प्रोसेस काफी लॉन्ग होता है अगर इंटरव्यू शेड्यूल कराने के लिए हम्म तो हाउ द रेफरल वर्क्स अगर आयुष पूछोगे तो मैं बताता हूँ या आप डायरेक्टली अप्लाई कर दो कैसे प्रोसेस होता है ये बताता हूँ तो हर टीम का एक मल्टीपल डेजिग्नेशन होता है मतलब टीम होता है जो अगर तुम अमेजोन डॉट जॉब्स में जाओगे तो तुम्हें एसडी के लिए 5 या 6 ओपनिंग मिलेगा ठीक है वो 6 ओपनिंग का 6 टीम होता है जैसे कि अमेजोन में डिफरेंट टीम्स होता है आरबीएस हो गया एडब्ल्यूएस हो गया प्राइम वीडियो प्राइम म्यूजिक फिर अमेजोन म्यूजिक हो गया फिर मैं जिसमें हूँ जो मेरा टीम है वो डब्ल्यू हो गया हम्म सस्पेसिस एक्टिविटी ऐसे होता है तो हर टीम का प्रोग्राम टीम होता है डेटा टीम होता है सपोर्ट टीम होता है एसडी डेटा इंजीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैनेजर जो भी हो ऐसा होता है तो अगर हम लोग ने कोई ओपनिंग रखा है तो वो प्रोसेस होता है मान के चलो एक बिजनेस एनालिस्ट के लिए अगर या डेटा स्पेशलिस्ट के लिए ओपनिंग आया तो पहला सोर्सिंग रिक्रूटर पोस्ट कर दिया जॉब ठीक है तुमने अप्लाई किया फर्स्ट प्रोसेस आता है सोर्सिंग रिक्रूटर ठीक है तो सोर्सिंग रिक्रूटर वो रिज्यूमे चेक करेगा अच्छे से कि ये डेजिग्नेशन सही है अब प्रेजेंट वाला डेजिग्नेशन ये आपका अमेजोन आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा ये आपका पैक्स ये सैलरी दे पाएंगे ये नहीं दे पाएंगे ये सब चीजें चेक करते हैं तो पहला प्रोसेस होता है वो लोग आपका जैसे ही अगर आपका क्लियर हो जाता है सोर्सिंग रिक्रूटर से तो आपके नेक्स्ट आपका ये जो रिज्यूमे हो जाएगा वो आपके पास हायरिंग मैनेजर के पास जाएगा वो फॉरवर्ड कर देगा रिज्यूमे आपके हायरिंग मैनेजर जो जिस टीम के लिए आप हायर कर रहे हो तो हायरिंग मैनेजर उस रिज्यूमे को अच्छे से चेक करेगा अपने टीममेट्स के साथ चेक करेगा जो टीम इस पे काम कर रहा है जो अगर मेरे टीम में अगर आपको हायर कर रहे हो तो हमारे से रिज्यूमे चेक करवाएंगे कि देखो इनका रिज्यूमे ठीक है कि इस टीम में हमारे लिए परफेक्ट है कि नहीं परफेक्ट फॉर द नहीं है रोल दैट दे अप्लाइंग राइट तो उस पे हम लोग चेक करते हैं कि ये ठीक है हम लोग अगर बोलते ठीक है तो हायरिंग मैनेजर रिक्रूटर को बोल देगा कि इसका इंटरव्यू शेड्यूल करा दो हम्म ये प्रोसेस होता है तो इसके बाद हम लोग एक फोन स्क्रीनिंग रखते हैं जो फोन स्क्रीन टीममेट से रखते हैं उस पे हम लोग जो रिज्यूमे में जो भी अपडेट दिया है कुछ भी पॉइंट डाला वो गलत है या फेक है सब कुछ हम लोग नॉर्मली बात करके
देखते कि फिगर हाँ आउट ठीक, करते हैं। फिगर आउट कर लेते कि ठीक है, देन द प्रोसेस विल स्टार्ट, इंटरव्यू प्रोसेस। तो उसमें 4-5 राउंड हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द पैकेज और लेवल के हिसाब से वही लेवल होता रहता है। तो 2-3 राउंड हो जाता है, उसके बाद एक राउंड होता है बार रेजर राउंड। अगर बार रेजर आपको पता नहीं है, अमेजोन में बार रेजर राउंड होता है। बार रेजर्स आर द लिमिटेड पीपल ऑफ अमेजोन हु क्लियर दोस बार इंटरव्यू विद इन अमेजोन। एक उसमें हर एम्प्लॉय, मतलब जो भी इंटरव्यूअर होता है वो बार रेजर होता है, जो कि हर जितना भी हायरिंग किया है वो अच्छे तरीके से किया हो। उसका एक ट्रेनिंग वगैरह भी होता है। तो अगर मान के चलो 5 लोग सीनियर मैनेजर बैठे हुए, जैसे कि मान के चलो आयुष में और ABC ने बताया है कि हमें इस बंदे को हायर करना है या इस बंदी को हायर करना है, बट इफ द बारेजर ने अगर पॉइंट कर दिया कि नो, हायर नहीं करना है, देन वी हैव टू रिजेक्ट इट। बार रेजर का डिसीजन क्या, मतलब किस बेसिस पे होता है, ये थोड़ा ऑडियंस को दे एक्सप्लेन आर द कर। एक्सपीरियंस इंटरव्यूअर, यू कैन से। ओके। काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने जो भी हायर किया है वो अच्छे से हायर किया है, वो टीम अभी अच्छे से पोजीशन पे है, ऐसा होता है उनके गॉट इट। लिए वो। क्योंकि बार रेजर का पूरा अलग ही प्रोसेस है। अमेजोन में अगर मान के चलो 1 मिलियन एम्प्लॉयज है, तो शायद 20,000 से कम, 10,000 या मतलब बहुत कम है, 10,000 या 9,000, इतने क्या, मुझे मैं अप्रोक्स बता नहीं सकता, बहुत कम लोग बार रेजर होते हैं अमेजोन में। ओके 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 ओके। तो वही डिसीजन लेता है बार रेजर वाले कि ये कैंडिडेट को ले नहीं सकता। अगर मान के चलो मेजोरिटी ने बोल दिया कि ये अच्छा है, बट बार रेजर ने पॉइंट आउट कर दिया कि ये ठीक नहीं है, तो हम रिजेक्टेड। रिजेक्टेड, हम कुछ नहीं कर सकते। Hmm. तो ये प्रोसेस होता है। Nice, Vishal. This was seriously a very information, like very informative, I would say. The people हम्म who are looking out for the Amazon jobs, I would say. Like हम्म I would put this, अलग से थोड़ा डाल दूंगा. But हम्म yeah. So Vishal, I mean, talking about your, we talked about your tough times. We talked about your journey from a rookie to the professional. We know your struggles now. अब थोड़ा आते हैं about the different phase of your life. ओके। So, like, आप टाइम कैसे स्पेंड करते हो, खाली टाइम? हाउ वुड यू लव टू स्पेंड टाइम विथ योरसेल्फ? लाइक व्हाट इज योर मी टाइम बेसिकली? ओके, सो डिपेंड करता है मैं कहाँ पे हूँ, पहला बात आता है। हम्म। अगर मैं बैंगलोर में होता हूँ, बैंगलोर में मेरा लाइफ ऐसा है कि बैंगलोर वालों को पता होगा कि बैंगलोर में कुछ करने को होता नहीं है ज्यादातर। हमारे पास मॉल है और एक पब है, ठीक है। यही होता है, हमें वीकेंड में यही कर सकते हैं, या तो अपने आप को टाइम दो। तो सैटरडे संडे, मोस्टली सैटरडे को मैं मोस्टली अपने आप को टाइम देता हूँ, और एक दिन में निकाल लेता हूँ घूमने का, कैफे में जाने का या दोस्तों से मिलने का। बट ऐसा सिचुएशन आता है लोगों का बैंगलोर में कि लोग एक दूसरे से मिलते नहीं बिकॉज ऑफ ट्रैफिक। वो अगर करेक्ट। 5 किलोमीटर में है, वो उससे मिलने में नहीं जा रहा भाई, इतना दूर। हालत खराब है। हालत खराब है। अगर मैं घर पे रहता हूँ या कोविड के टाइम पे अगर मैं घर पे रहता तो मैं अपने आप को हर टाइम पे एक ब्रेक देता था कि अगर मान के चलो आ, हर प्रोफेशनल लाइफ के बाद मुझे एक ब्रेक चाहिए होता है। अगर मेरे लगता है कि मेरा माइंड काम नहीं कर रहा है, मैं अपने आप को ब्रेक देता हूँ। मैं 1 हफ्ते के लिए छुट्टी ले लेता हूँ, मैं ट्रैकिंग पे निकल जाता हूँ, हिमाचल या सिक्किम या कहीं पे भी चले जाता हूँ, बस मुझे घूमना है ताकि एक आपने अभी तक रिलैक्स। कितने ट्रैक कर चुके हैं, इफ आई वुड आस्क? और आपका बेस्ट ट्रैक कौन सा रहा है? मैं इसे पूछता भी आपसे, बट अब तो हाँ हाँ, स्टार्ट हो गया। हाँ। तो ट्रैक मैंने 5 ट्रैक किया अभी तक। द बेस्ट अगर ट्रैक में अगर बोलूँ, वो मेरे लिए था गोएचाला। तो एक्सपीरियंसेस तो काफी कहाँ लोग पे को है? अगर आप थोड़ा हमारे ऑडियंस को थोड़ा एक्सपीरियंस बताइए, कहाँ पे है, कितने फीट पे है, क्या क्या, ओके ट्रैकिंग, एंड कैसा, लाइक हाउ वाज ओवरऑल एक्सपीरियंस? ओके, सो गोएचाला इज अ डिफिकल्ट ट्रैक। मुझे एक ऐसा ग्रुप चाहिए था जिससे मैं सोलो जा रहा था, मैं सोलो ट्रैवल करता हूँ, तो मुझे इंडिया एक्स बेस्ट लगा, उनका मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब कुछ होता है। तो मैंने गोएचाला चूज किया था, विच कम्स इन डिफिकल्ट ट्रैक। वो ट्रैकिंग था 8 डेज का। तो एल उसका जो टोटल हाईएस्ट फीट था वो 15,100 फीट का था। गॉड, ओके, अबाउट 15,000। हाँ। तो मैंने गौचाला चूज इसलिए किया था क्योंकि वहां से तुम्हें कंचनजुंगा अच्छे से पूरा दिखता है, नेकेड आई से, मतलब कंचनजुंगा तुम्हारे सामने ही है ऐसा। तो वो मुझे ओह, देखना था। नाइस, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो वो था गौचाला, मैंने चूज किया था सिक्किम में। तब मैं आसाम में अपने होम टाउन में था, तो मेरे लिए बेस्ट वो था क्योंकि मुझे एनजीपी में उतरना था। एनजीपी मेरे यहाँ से 30 घंटे का लगता ट्रेन में, तो एनजीपी उतर के मैंने सामने पड़ रहा था गौचाला। मैंने 14 डेज या 10 डेज का लीव लिया था ऑफिस से। तो गौचाला में गया था। गौचाला वहाँ 8 डेज का ट्रैक था। उस पे मुझे 12, हम लोग का 20 लोग का ग्रुप था, उसमें भी मुझे बैंगलोर के लोग मिले थे।
ठीक है, मोस्टली ये ट्रैकर्स हो जो भी होते हैं ना, ये बैंगलोर वाले ही होते हैं, पता नहीं क्यों कहीं से आ जाता है। ट्रैकर भी बोलते हैं कि ये कहाँ से, मतलब मोस्टली सोलो। वहां पे मुझे दो तीन मिले थे। एक लिंक्डइन में जॉब करता है एज एस डी, फिर एक कोई डेटा इंजीनियर था, एक थी वो भी डेटा इंजीनियर, एक काफी आईटी एम्प्लॉयज मिले थे। और वहां पे ओके, मुझे ओल्ड एज दो पर्सन मिले थे। एक थे योगिता दीदी जो डॉक्टर है मुंबई से, उनकी एज शायद 50+ है, बट उन्होंने काफी ट्रैक किया था, तो वो लोग भी मिले, वो मिली थी। और भी एक पैशनेट पीपल्स आर 60+ भी मिले थे। तो मैंने बोला कि विशाल तू सोचता था तो यू आर ए गुड ट्रैकर, बट तुमसे ज्यादा और भी लोग हैं। इन्होंने देयर। एवरेस्ट, जो जो मिले थे वो एवरेस्ट बेस कैंप भी जा चुके हैं। ये लोग ऐसे थे। ओह, उन्होंने नाइस। एबीसी अन्नपूर्णा बेस कैंप भी कर चुके थे, कश्मीरी ग्रेट लेक्स भी कर चुके थे। तो गोयचला ऐसा था ना, गोयचला कि हमारा जो लास्ट डे समिट पुश था वो था रात को। हम लोग पहुंचे थे जोंगरी टॉप। तो जोंगरी टॉप पे हम पहुंचे थे शाम के 6 बजे। हाँ, तो हमें सो जाना था 7:30 को, बिकॉज हमारा समिट पुश था रात के 12:30 बजे निकलना था, हाँ, जो सनराइज देखना है। जो वो था डे 7, मतलब डे 7, डे 5, डे 6 था। ओके, ओके। तो तो हम लोग ने 7:30 बजे सो गए थे। रात को 12:30 बजे उठे थे। हम लोग ने लंच पैक किया, सब कुछ मतलब ब्रेकफास्ट पैक किया था, इंडिया हाइक्स ने करवाया था। हाँ, हाँ। तब इन्हें हेडलैम्प लगाया, पोल लिया। ओ रात को बाप रे। 12:30 बजे हम लोग को जाना था, कितने, 12,000 से जाना था 15,000 फीट पे। माय गॉड। और वो भी अंधेरे आ, में। हाँ, 6 घंटे का ट्रैक था वो। तो वो गया था, जाते जाते मतलब एक पॉइंट आया, अचानक से कॉन्फिडेंस आ गया पाओ में या कुछ में कि एक सनराइज हो रहा है, वी यू हैव टू विटनेस द सनराइज। क्योंकि एक समिट पुश है, तुम्हें सनराइज देखना है। व्हेन वी वेंट टू द समिट, तो देखा था कि लाइक व्हेन द फर्स्ट रे ऑफ लाइट हिट द माउंट कंचनजुंगा एंड द अदर पीक ऑल्सो, इट वाज लाइक माउंट कंचनजुंगा पूरा हाँ। ऑरेंज हो गया था। इट वाज लाइक बर्निंग। ओ इट वाज, गॉड। yeah, it was totally orange and it was a good experience for me and वो बॉस, आई होता एम ना, फीलिंग अ गूज बम्स लिटरली यू आर टेलिंग दिस स्टोरी। या एक पूरा ऑरेंज था वो, मतलब क्या ही बोलूं, एक फील आ रहा था। एंड तब लगता था कि एक रे ऑफ लाइट बोलते लोग, वो मुझे मिला था कि मैं ना, ये मेरा वर्थ था मेरा आना। एंड आने के बाद ये अपने आपके दिमाग में जो भी चलता है कि आप जो भी बैड थॉट्स हो वो निकल जाता है, सुकून सा, शांति। और वो मुझे मिला गोवा जाने के बाद। और आई एम उसके, हैविंग गूज बम्स या मैन। यू हैव टू डू ट्रैक ब्रो, आई मीन जब लगता ना एक समिट के बाद एक सनराइज ऑरेंज हो जाना पहाड़, तो आई एम ऐसा था। प्लानिंग नेक्स्ट या नेक्स्ट तो ट्रिप। वो मेरा गोचला वन ऑफ द बेस्ट था। बाकी आई हैव प्लान फॉर 2023 टू डू माउंटेनियरिंग। जो मैंने अभी प्लान के रखा रखा है कि 6,000 मीटर के ऊपर कोई भी माउंटेनियरिंग मुझे करना है, या तो फ्रेंडशिप पिक, जो भी हो वो प्रॉपर गियर के साथ मुझे करना है। तो वो मैंने अभी यू नो, 2023 आप में अगर टारगेट मेरी रखा है। 3 दिन पहले की गूगल हिस्ट्री चेक करोगे अबाउट द सर्च, उसमें सर्च हम्म। में आएगा माउंटेनियरिंग क्लासेस। हाँ तो मैंने सर्च किया है अभी 3 दिन पहले, जस्ट हाँ बिकॉज आई वांटेड टू डू सिमिलर थिंग। तो ये एक्सपीरियंस अगर कभी भी अगर ट्रैक पे जाते हो, फर्स्ट होता है कि आगे आपको डिफिकल्ट ट्रैक, मॉडरेट ट्रैक, इजी ट्रैक चेक करना पड़ता है। क्योंकि गौचला में 3 या 4 लोग जा नहीं पाए थे। दे वे टेकिंग मेडिसिन ऑल्सो, डिमो कुछ था, डायमॉक्स मेडिसिन उन्होंने लिया था। बट मेरे पास वो पेशेंट था, मैंने विदाउट डायमॉक्स में गया था वहां पे। एसपीओ2 मेरा काफी अच्छा था, 94 के करीब था, माउंटेन में 15। अगर मैं 12,000 के फीट के ऊपर था तो लोगों का था, बाकी जो ट्रैकर्स थे उनके थे 84, 78, बट मेरे 94 के करीब था, 90 के करीब था। तो ट्रैक लीडर भी खुश, बोलते कि तुम्हारा तो अलग ही सीन है। बस ये था Awesome, मेरा yaar. I ट्रैकिंग का। mean, when I was hearing your story about that Kanchenjunga light and all, I was having a goosebumps, right? या Yeah, इट बहुत इज, ही awesome experience है, and definitely मैं next year कुछ ना कुछ तो track करूंगा ही, यस। पक्का है। Okay, विशाल, so अभी next track भी आपने अपना बता ही दिया है, आपकी जर्नी तो we have heard about it, how amazing it was, I would say, क्योंकि ठीक है, ups downs सब लगे हुए हैं। राइट राइट। So, thank you, Vishal. I थैंक think यू। I should take a leave. या Anything would you like to give a suggestion to our, people, any college pass out guy, or who is in the third or fourth year into the BTech or BCA, who is looking for a job in the similar kind of field. So,
like kind of any suggestions for them or any tips for them which might help them to get into the job? ओके, फर्स्ट है कि डोंट लूज एनी होप। फर्स्ट अपना आपको कॉन्फिडेंस रखो। फर्स्ट ये, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलता है ग्रैब इट फर्स्ट, ठीक है। टॉक टू योर सीनियर्स, टॉक टू योर एनी इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट, आपका नेट लिंक्डइन का कनेक्शन का बढ़ाओ, देन तुम्हें ये लगेगा कि उनसे मुझे कुछ लर्निंग मिलेगा। फर्स्ट चीज होता है कि ग्रैब इट, कुछ भी मिलता है ग्रैब इट, स्टार्ट लर्निंग। अगर यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, नोट इट डाउन व्हाट यू आर डूइंग इन योर करंट ऑर्गेनाइजेशन and try to build a roadmap for your next target company. If I start targeting for my next company for the Google, मुझे उसका रोड मैप क्लियर करना पड़ेगा। फर्स्ट मुझे रोड मैप क्लियर करना पड़ेगा, देन आई हैव टू प्रिपेयर द चेकलिस्ट कि ये मैंने कर चुका हूँ, ये मेरा प्रिपरेशन लेवल तैयार हो गया है, देन आई एम रेडी फॉर द इंटरव्यू। ये प्रोसेस हमेशा याद रखना। और कभी भी ये नहीं कि अगर मैं छोटे से कंपनी में हूँ मेरा कभी होगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब होता है। Right. And don't lose the hope, I would say. There is Yes. a, वही बोला जाता है ना, there is a ray of light in the tunnel basically. बस Yeah. कुछ के लिए the ray of light is too early, कुछ के लिए the ray of light is too far. But Right, you right. have to take step by step to reach to that ray of light. राइट। तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा। और स्टूडेंट अगर स्ट्रगल कर रहे हो कोडिंग में, भाई पैसे के पीछे मत दौड़ो। पहली बात, लगता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर अच्छे कमा रहे हैं, ऑब्वियसली दे आर अर्निंग अ लॉट, बट ऐसा नहीं है कि तुम उस पैकेज में कभी जा नहीं सकते हो। उस पैकेज में जा सकते हो इफ यू आर नॉट अवेयर। अगर तुम नॉन टेक में हो, एक सभी का अल्टीमेट गोल होता है टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर या सीनियर टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर। वो रोल, तुम्हारा रोड शायद पाथ थोड़ा स्लो जाएगा, उनका जल्दी जाएगा, बट अल्टीमेटली यू विल गो टू दैट रोल। अगर अगर कब अब कोई बड़ी कंपनी के डायरेक्टर लेवल पे जाओगे, तो उनका भी अगर बैकग्राउंड चेक करोगे, देखोगे कि वो जरूरी नहीं कि वो डेवलपर से रोल से ही हो, वो मार्केटिंग से भी हो सकता है, कोई भी रोल से हो सकता है। यू हैव टू बिल्ड द प्रोसेस। हम स्लो हो जाएंगे बट हम जाएंगे उस लेवल पे। पैकेज मैटर नहीं करता हमेशा, पैकेज मैटर पहला आपका इंटरेस्ट। आपका पास स्लो जाएगा बट आप जाओगे उस पाथ में। आपको अगर 30 LPA चाहिए, हो सकता है वो बंदा 2 साल में कमा रहा हो, आप 4 साल में कमाओगे वो, बट अल्टीमेटली जगह पे जाके आप भी कमाओगे वो पैसा। मेरा भी यही कहना है विशाल, पता है क्या, आई मीन पीपल आर रनिंग फॉर द मनी एंड दिस थिंग, ठीक है, आप पैसे के पीछे भागो, इट्स ओके, बट कुछ लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं उसी के लिए। कुछ होता है नहीं, मैं कंपनी स्विच कर रहा हूँ फटाक से, ये कर रहा हूँ, इट्स नॉट अ गुड रीजन, और आई डोंट फील इट्स अ गुड थिंग टू डू दैट। मतलब आप कर रहे हो, इट्स ओके, बट आप अपनी जर्नी देखो, आपकी एक जर्नी अलग है, आपके जो आसपास लोग हैं, आपके जो आसपास चीजें हैं, दैट इज डिफरेंट, ठीक, आप उसको एंजॉय करते हुए चलो, इट्स ओके, एंड इट्स ओके, ठीक है, आप 2 साल टाइम ले रहे हो, इट्स ओके, बट आप एंजॉय करते हुए जा रहे हो। मेक श्योर you feel good about yourself at the end of the day, and you feel productive at the end of the day, I would say. करेक्ट, वही जर्नी होता है हम लोग का। कोई अगर दिल्ली पहुंच रहा है, कोई मुरादाबाद होकर पकड़ के जा रहा है, या कोई पटना से जा रहा है, तुम कहीं घूम के जा रहे हो, बट जाओगे आप भी वहीं पे। नेवर लूज एनी होप। जरूरी ये भी होता है कि मैंने काफी फ्रेशर को देखा है कि मुझे डेवलपर रोल पे जाना है, ठीक है, अगर डेवलपर रोल में जाना, अगर आपका इंटरेस्ट है, आप उसी रोड मैप को फॉलो करो। जरूरी नहीं है कि बोलते हैं ना, मेरे पास लिंक्डइन में ऐसे मैसेज आते हैं कि भैया मैं ऐसा पैकेज कमाना चाहता हूँ। जब मैं पूछता हूँ कि आपके ये स्किल्स है या नहीं, ये कौन सा स्किल्स है, जब मैं स्किल्स देखता हूँ वो स्किल्स मैच नहीं करता, तो उनको मैं बोलता हूँ देखो, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है उस रोल, मतलब आपका करंट स्किल्स नहीं है उस चीज में और आपका इंटरेस्ट नहीं है, आपको पैसा कमाना, तो मत जाओ। आप ये डेजिग्नेशन चूज करो। क्योंकि आप अगर देखोगे आयुष, डेटा इंजीनियर रोल, डेटा साइंटिस्ट का रोल, उनका भी जो भी पैकेज लेवल है वो ऑलमोस्ट सेम है। करेक्ट, एग्री, ठीक है, वो ये सब चीजें होता है। ये बस ये चीज है, बस आपका इंटरेस्ट पहले होना चाहिए, फिर आप पैकेज के पीछे दौड़ो। करेक्ट, बाकी इंटरेस्ट रहेगा आपका, ऐसे लग जाएगा। मैं गुड एग्जांपल आयुष खुद ही हो भाई, तुमने कहाँ से स्टार्ट किया है? राइट, एंड आई नो, सपोर्ट स्टार्ट किया था राइट, लाइक फोन पे एज अ सपोर्ट, एंड लाइक वो 1-2 महीने के, एंड आफ्टर दैट टुडे आई एम अ डेटा इंजीनियर कंसल्टेंट। एंड आई नो कि तुमने भी मुझे पूछा था कि ये रोल पे क्या चीज चाहिए थे, मैं तो हम लोग ने डिस्कस भी किए थे। और आज देखो तुम्हारा डेटा इंजीनियर पे रोल पे इंटरेस्ट था, तुम डेटा में आ गए हो। अब तुम्हारा लग रहा है कि हाँ मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ, मेरा नेक्स्ट जर्नी दिल्ली पहुंचने का इधर है। तुम भी जा रहे हो, अल्टीमेटली तुम भी उसी जगह पे जा रहे हो। तो ऐसा कभी नहीं होता। लाइव एग्जांपल आयुष है, मैं भी खुद हूँ, मैंने भी नाइट शिफ्ट से स्टार्ट किया, हम भी जा रहे हैं, पर स्लो जा रहे, जाएंगे हम लोग भी।
Correct. To the people who want to connect to Bishal, I will put down the LinkedIn profile, LinkedIn link of his profile in below the comments or in the info. So people can reach out to Bishal and may ask any of the queries. He can follow them, he can connect them. And he is a great influencer and do some witty comments in the LinkedIn. So be safe with that. But he is a great influencer. You will definitely learn Vishal, like from Vishal. That is for sure. So Vishal, it was nice talking to you, Same, and it same here. was extremely informative session, I would say. Okay, it will. I personally think this will help to many of the college, pass outs and many of the people who are basically struggling to get into the companies like Amazon, and the mainly the students who are not into the coding, so they don't feel worthless, I would say. So the like this session is extremely important for them, I would say, because the journey that Bishal has told about himself will help you eventually to get into similar kind of role if you are not into the coding. Coding is not everything, I would say. So please, I mean, have a connect with Bishal. He will definitely help you. I will also put down the LinkedIn comment. You can connect to me also for any of the data engineer roles. So Bishal, thank you so much. It was really a nice session. I hope we Yeah, will meet soon, and definitely I will plan, next track, I would say. Okay. yeah, yeah. Yeah.